Good afternoon to everyone. I hope you're all able to hear me very clearly. So Yes. I welcome you all for this special session on investments into P2P investments, P2P lending. So this is a new concept. So I sincerely thank you all for joining us on time on a Saturday afternoon. But we'll make sure that this 1.5 hours which you are going to spend with us, देर विल बी अ लर्निंग आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए समझने के लिए होगा एंड आई पर्सनली फील दैट दिस सेशन विल बी वेरी interesting as well as important for all of us because interesting because बहुत सारे लोगों को P2P लेंडिंग क्या है ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है काफी लोगों को पता भी होगा बट मे बी पूरी तरह से नहीं पता है तो उनके लिए आई एम श्योर ये सेशन विल बी अ गुड वैल्यू एडिशन and importantly because we are at historically lowest interest rates. आप FDs या डेट म्यूचुअल फंड्स में वी आर नॉट गेटिंग मोर देन 3-4% या मैक्सिमम 5%. So in times like this product comes as a very helpful option, which is potentially giving almost double of what FDs are giving. So without wasting much of time, we'll go with the introduction of the speaker today. So we have with us Mr. Agam Maniyar with us. Agam, thank you for being with us today. Agam is the co-founder and vice president finance at Liqui Loans. He was the wealth manager with IFL Wealth Management for past 6 years. And then after that, he joined JM Financial for 2 years, where he acquired and managed nearly 3,000 crore plus assets. By education, Agam is an MBA finance from IBS Hyderabad. So over to you, Agam. I think before that, the agenda of the session is Agam हमें Liqui Loans investment क्या है, P2P investment क्या है, he'll take us through exactly क्या investment options available है. And more importantly, he will sort out a lot of question and answer because though investment के point of view say the rates are very attractive, but more importantly for all of us to understand is कि what are the risks involved, क्या है P2P. So over to you, Agam. Perfect. Great. Thank you, Sapna ji, for giving me this opportunity. Good afternoon, one and all. I hope everybody is safe at your end. I am Agam Maniyar, the co-founder here at Liqui Loans. Giving you a quick background about my company. We are one of the 21 license holders from the RBI to run a peer-to-peer platform. First of all, peer-to-peer होता क्या है, right? Peer-to-peer कुछ नया नहीं है, सालों पुरानी प्रथा एक दूसरे को ब्याज पे पैसा देना in an English regulated format is called peer-to-peer, right? So it's not new. पहले हम एक दूसरे को देते थे, मतलब फ्रेंड्स को देते थे, फैमिली को देते थे, कम्युनिटीज में पैसा देते थे, राइट? पर धीरे धीरे हमने एटलीस्ट फॉर्मल मनीज विच इज व्हाइट मनी उसका लेन देन कम कर दिया फॉर 2 लार्ज इश्यूज दैट वी वर फेसिंग. एक, सगा भी ठग जाता था और कितनी बार टाइम पे पैसा वापस ही नहीं आता था. एंड दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग टू अ बैंक, वी स्टार्टेड गोइंग टू एन एनबीएफसी सेइंग कि यहां मैं पैसा डिपॉजिट कर लेता हूं, मेरे को एक डिसेंट फिक्स ब्याज मिल जाएगा, एंड प्रोफेशनली लेड कंपनीज विल लेंड माय मनीज फॉरवर्ड टू ईदर अ रिटेल इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट, और मेरे को अच्छी तरह से रिकवरी करके लाके देगा और मेरे को एक अच्छा रिटर्न बना के देगा. सो दैट वाज द बैकड्रॉप कि बैंकिंग इंडस्ट्री स्केल्ड अप, ट्रेडिशनल पीयर टू पीयर डिड नॉट स्केल अप बियॉन्ड अ पॉइंट. बट देन वी सेड कि जब बैंक और एनबीएफसी ये धंधा करने लगे, एक्चुअली आपसे ज्यादा रिटर्न तो वो बनाने लगे. So I'll give you a simple example. आज आप बैंक में एफडी रखते हैं, राइट? लेट्स अज्यूम कोटक, एसबीआई या एचडीएफसी. 1 साल का एफडी का रिटर्न नियरली 5% प्री टैक्स चल रहा है. अब वही बैंक आगे कॉर्पोरेट को 8-9% पे पैसा देता है और रिटेल आदमी को ऑन एन एवरेज 12-13% पे पैसा दे रहा है. तो आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो वो आगे रेट पे इंडिविजुअल्स को ही दे रहा है. लेट्स अज्यूम आपने आज एफडी रखी और आपके रिलेटिव को कल 12% पे लोन मिल रहा है, राइट? अब आप सोच रहे हो कि आपसे ज्यादा रिटर्न तो बैंक क्यों कमा रहा है. अब पूरा का पूरा उसका रिटर्न नहीं है, एसेंशियली देयर आर लार्ज ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है, ब्रांच है, लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद प्रॉफिट्स हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू हेल्प यू मैक्सिमाइज योर रिटर्न बिकॉज उनके खर्चे ज्यादा है. वी सेड अगर खर्चे कम कर दिए एंड मोर ओवर रिस्क कम कर दिए तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न भी बनेगा और सेफ्टी भी आएगी. ये सेफ्टी के एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट 10 सालों में काफी लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक की एफडीज में भी, ट्रिपल ए डेट फंड्स में भी
और अच्छे अच्छे ट्रिपल ए बॉन्ड और एनसीडी में भी पैसा खोया, जो हम कभी सोच ही नहीं पाते कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, और पैसा कैसे टूट रहा है। तो दैट इज व्हेन इन 2018 वी फाउंडेड लिक्विड लोन्स। आवर आइडिया वाज कि एक अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाए जो ट्रेडिशनल सब रिस्क काट दे और आपको एक डिसेंट रिटर्न दे, जो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में मदद करे। तो एज स्वप्निल जी राइटली सेड, आज डेट फंड्स 3 से 4.5-5% ज्यादा रिटर्न दे पा रहे हैं। अच्छे अच्छे एफडीज हार्डली 5% दे रहे हैं प्री टैक्स, जहां इन्फ्लेशन ही ऑलरेडी 5.5% से ज्यादा है, विच मीन्स ये सब प्रोडक्ट्स में पैसा डालने के बाद पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, एक्चुअली कैपिटल इरोड हो रहा है। सो नाउ यू नीड टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी जहां पैसा इज ग्रोइंग हायर देन द इन्फ्लेशन। अब गिविंग यू अ क्विक बैकग्राउंड अबाउट पीयर टू पीयर। इंडिया में पीयर टू पीयर नया नहीं है, 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। देयर आर फ्यू प्लेयर्स हु स्टार्टेड वेरी अर्ली इन द डे, बट इसको लाइसेंसिंग नॉर्म्स में या रेगुलेटरी बैंडविड्थ में लाने का काम आरबीआई ने 2018 में किया, जब उन्होंने कहा कि इसको अगर किसी भी को करना है उनको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंदर ही ऑपरेट करना पड़ेगा। जहां एक इन्वेस्टर आज की तारीख में अब 50 लाख रुपया पर पैन कार्ड लगा सकता है, मैक्सिमम वो एक बोरोवर को 50,000 रुपया दे सकता है। बोरोवर टोटली सिर्फ 10 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं ले पाएगा और मैक्सिमम लोन भी 36 महीने की होगी। So that is what peer-to-peer industry shaped up. तब अर्ली इन द जर्नी हम जब लाइसेंसेज आए, हमने ये लाइसेंस लेने की शुरुआत की। क्यों की? इसके पहले मेरे प्रमोटर्स गौतम एंड अचल, एंड आई विल आल्सो शो यू सम विजुअल्स टू सपोर्ट व्हाटएवर आई एम सेइंग। तो 2018 में जब हमने ये शुरुआत की, गौतम एंड अचल ऑलरेडी इसके पहले एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी चला रहे थे जिसका नाम था रेंटो मोजो, जो इंडिया का सबसे बड़ा फर्नीचर और अप्लायंस लीजिंग प्लेटफॉर्म है। अब इसको मैं क्वाज़ी पीयर टू पीयर कंपनी कहूंगा क्योंकि लोगों से पैसा दे रहे थे पर पैसा नहीं ब्याज पे दे रहे थे, उसको एसेट में कन्वर्ट करके एसेट लीज आउट कर रहे थे। इन दैट जर्नी दे हैव मेड दिस कंपनी 1000 करोड़ एंटिटी, जिसमें एक्सेल पार्टनर्स जो फ्लिपकार्ट और फेसबुक के सबसे बड़े इन्वेस्टर, बेन कैपिटल वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसल्टेंसी फर्म्स इन द वर्ल्ड, और रिसेंटली सैमसंग फैमिली की खुद का पर्सनल पैसा दे हैव इन्वेस्टेड इनटू रेंटो मोजो। अब ये जर्नी में जब वो बेन को मिले, इवेंचुअली दे मेट अ पर्सन इन द यूएस जो वर्ल्ड के सबसे बड़े पीयर टू पीयर फर्म के एक्स सीईओ है, रेनॉल्ड लप्लांट, जो लेंडिंग क्लब करके कंपनी है यूएस में चलाते थे, जो नैस्डैक पे कुल मिला के $5 बिलियन पे लिस्ट हुई थी। अब वो इंसान इवेंचुअली रेंटो मोजो में एक इक्विटी इन्वेस्टर बना और गौतम और अचल को आइडिया दिया कि आप प्योर पीयर टू पीयर फर्म बनाइए, क्योंकि फिक्स इनकम में लोगों को तकलीफ हो रही है कि एक तो इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है तो रिटर्न नहीं बन रहा, सेकेंडली सेफ्टी जाती रही है। तो अगर आप एक कोई अच्छा सेफ फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाएंगे तो इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे और सामने अच्छे बोरोवर्स को अच्छे प्राइस पे लोन दीजिए। तो दैट वाज द थॉट बिहाइंड लिक्विड लोन्स। अर्ली इन द डे व्हेन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, मैट्रिक्स पार्टनर्स ने हमें बैक किया। अब मैट्रिक्स पार्टनर्स काफी लोग को पता होगा, आज ओला कैब्स, ओला स्कूटर, कंट्री डिलाइट, एम स्वाइप, रेजर पे, ट्रीबो होटल्स, क्विकर.com, ये सब कंपनी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैट्रिक्स पार्टनर्स है। उसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्रेड, उसका कुणाल शाह, ही इज एन इक्विटी इन्वेस्टर। इंडिया के सबसे बड़े इनकम टैक्स पेयर फॉर 2016, जिसने टाटा बिरला अंबानी से ज्यादा टैक्स भरा था 2016 में, आशुतोष टपारिया, ओनर ऑफ फैमी केयर, ही केम ऑन बोर्ड। वी गॉट अभिषेक दालमिया फ्रॉम द दालमिया भारत फैमिली, एंड वी गॉट मिस्टर सत्य बंसल, हु एसेंशियली वाज द एक्स सीईओ ऑफ बार्कलेज इंडिया वेल्थ मैनेजमेंट। इन्होंने कुल मिला के हमें 12 करोड़ रुपए दिए टू स्टार्ट दिस बिजनेस, टू एड्रेस वन लार्ज इशू। क्या था ये इशू? कि आज एक्चुअली इक्विटी का भले बोलबाला हो, पर एक्चुअली पैसा तो फिक्स्ड इनकम में ही पड़ा है। आज मेजॉरिटी लोगों का पैसा बैंक डिपॉजिट में पड़ा है, पीपीएफ में पड़ा है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में पड़ा है, किसान विकास पत्र में पड़ा है और डेट म्यूचुअल फंड में पड़ा है, राइट? बिकॉज इंडिया में इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रिटर्न की आवश्यकता नहीं है, इंडिया में इन्वेस्टर्स को सेफ्टी की आवश्यकता है और उसके साथ एक डिसेंट रिटर्न चाहिए जिनसे वो इन्फ्लेशन बीट कर सके और अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सके। पर एज आई सेड, लास्ट 10-15 साल में आप देखते रहे कि इंटरेस्ट रेट्स घटते जा रहे हैं। आज एफडी डेट फंड में 5% से कम का रिटर्न बन रहा है, इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है, और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में लोगों ने पैसा खोया। अब पैसा क्यों खोया, क्या हम कर सकते हैं आपके लिए, कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सब करने के लिए जब ये कंपनी स्टार्ट की हमने चाहा कि पहले तो डेटा समझते हैं कि पैसा जा कहाँ रहा है, टूट क्यों रहा है, राइट? अब ये डेटा आप भी देख के आश्चर्यचकित होंगे कि हम हमेशा बड़े से अच्छे बैंक और एनबीएफसी में पैसा लगाने जाते थे। कोई आईसीआईसीआई जाता था, कोई एसबीआई, कोई कोटक, कोई एचडीएफसी, कोई बजाज फाइनेंस।
अब 2016 से 20 का ये डेटा है, सो इट्स रीसेंट डेटा, इज नॉट ओल्ड डेटा। यहां हमने देखा कि जब ये बैंक और एनबीएफसी आपका पैसा लेते हैं, बट ऑब्वियसली इसको आगे ब्याज पे लगाते हैं, किसको देते हैं? कॉर्पोरेट्स को देते हैं और रिटेल इंडिविजुअल्स को देते हैं। पर जब वेटेड एवरेज में इनका एनपीए देखें, जहां एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जहां पैसा टूट रहा है, जब इन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स की नियरली 13.5% पैसा टूटा। अब जब इन्होंने रिटेल लोन्स की, ग्रॉस एनपीए सिर्फ 2.99% था, जिसका मतलब यह है कि जब जब कॉर्पोरेट एक्सपोजर लिया 4.5 गुना ज्यादा पैसा तोड़ रहे थे, राइट। और इसके सामने आप देखिए एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस का चार्ट, रेड टावर है ही है, प्रैक्टिकली जीरो जैसा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी कॉर्पोरेट ही नहीं किया, सालों साल रिटेल लोन बुक बनाई, जिसका फायदा यह है कि इतना डिवर्सिफाइड लोन बुक बना, अच्छे बोरोवर में बटा, शॉर्टर टेन्योर्स के लोन दिए, स्मॉलर टिकट साइज के लोन दिए, उसकी वजह से हमेशा एनपीए कम पाए और ग्रोथ अच्छा पाया। इसके वजह से ही तो आज सब फंड मैनेजर एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस के पीछे पड़े कि ये स्टॉक तो हमेशा पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो अगर रिटेल सेफ है, तो आप आज जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आपका सिर्फ एंड एक्सपोजर रिटेल है? द प्रॉब्लम इज नहीं। आज आप डेट फंड करते हो तो भी सिर्फ कॉर्पोरेट्स को पैसा जा रहा है, आप बॉन्ड एनसीडी लेते हो तो भी पैसा कॉर्पोरेट्स को जा रहा है, आप टिपिकली कॉर्पोरेटिव बैंक में भी एफडी करते हो तो लार्जली बैंक्स तो कॉर्पोरेट्स को ही पैसा दे रहे हैं। तो क्या आपके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जहां एक्सपोजर रिटेल ही हो? अगर वो होगा तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी आएगी। एंड दैट वाज द थॉट बिहाइंड स्टार्टिंग लिक्विड लोन्स, कि एक इंडिया का पहला प्रथम रिटेल डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाते हैं जहां एक्सपोजर सिर्फ रिटेल, और उसकी वजह से सेफ्टी आएगी, डिवर्सिफिकेशन आएगा और रिटर्न बनाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। स्वप्निल जी, वी आर गुड टिल हियर, आई विल टेक इट फॉरवर्ड। यस। सो अब रिटेल में एक्सपोजर बिल्ड करना चाहिए हर एक इंडिविजुअल को। और रिटेल में कैसा टाइप का एक्सपोजर? अगर मैं आपको यहाँ पूछूं कि यार आप सिक्योर्ड लोन्स के एक्सपोजर चाहेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन्स के एक्सपोजर चाहेंगे, आई एम श्योर सब यही कहेंगे सिक्योर्ड लोन्स करते हैं, राइट। पर डेटा तो कुछ अलग ही कह रहा है। सिक्योर्ड लोन्स में एनपीए आर हायर देन अनसिक्योर्ड लोन्स। होम लोन लीजिए, कार लोन लीजिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लीजिए, उसके एनपीए पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड से कम है, ज्यादा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? और ये एक साल का या एक क्वार्टर का डेटा नहीं है, ये सालों साल का डेटा है जो आपको नीचे दिख रहा है। और ये डेटा किसका है? सिबिल का। आई एम श्योर काफी लोग ने सिबिल सुना है। सिबिल इंडिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जब जब मैं और आप कोई भी तरह का क्रेडिट लाइन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कोई भी टाइप के लोन लिए, और जब जब हमने ये चुकाया, इसका डेटा ये सिबिल, एक्सपीरियन और क्रिफ को जाता है, और ये फिर ये डेटा पब्लिश करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अनसिक्योर्ड लोन में ज्यादा सेफ्टी है, एनपीए कम है। आप सोच रहे हैं ऐसा पॉसिबल ही कैसे है? एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। तो लेट्स अज्यूम आज मेरे को एचडीएफसी बैंक ने एक होम लोन दे दिया 1 करोड़ रुपए का, और उसका ईएमआई आता है मोटा मोटी 70,000 रुपए। वो तो मैं आज इजीली शायद चुका पाऊं, पर 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, क्या एचडीएफसी को पता है मेरी इनकम कितनी रहेगी, मेरी लायबिलिटी क्या रहेगी, मेरी प्रायोरिटीज शायद बदल ना जाए तो? विजिबिलिटी बहुत ब्लीक हो जाएगी व्हेन द टेन्योर इज लॉन्गर, प्लस अमाउंट बड़ा है। अब आज तो इजीली रीपे कर पा रहा हूँ, व्हाट इफ कल जाके कोई मेरा पे कट हो गया, या मेरा जॉब चला गया, या पेंडेमिक आ गया तो हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो शायद मैं 70,000 की ईएमआई इजीली नहीं भर पाऊंगा। उसके सामने टेक एन एग्जांपल कि बजाज फाइनेंस आपको आज 50,000 रुपए का कंज्यूमर लोन दे रहा है। अब वो आपको नेक्स्ट लेट्स अज्यूम 10 महीने में भरना है, विच मीन्स आपकी मंथली किस्त सिर्फ 5-5 हजार रुपए है। अब बजाज ने कंसिडरिंग कोई कोलैटरल नहीं लिया, तो कैसे एसेस किया आपको? आपका कैश फ्लो देखा, आपकी अर्निंग्स देखी, आपकी सेविंग्स देखी, उसके बिहाफ पे पूरे ड्यू डिलिजेंस के साथ आपको एक कंज्यूमर लोन दिया गया। बिकॉज शॉर्टर टर्म विजिबिलिटी इज वेरी इजी, कि अगर बंदा अगर अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा सेव कर रहा है, इन मोस्ट केसेस में शॉर्टर टर्म लोन चुका पाएगा। और इसीलिए एचडीएफसी, जो आज हमारी सबकी फेवरेट बैंक है, 2019 में दे हैड कोटेड दैट दे क्रिएटेड अ 1 लाख करोड़ अनसिक्योर्ड लोन बुक, और उसका एनपीए सिर्फ 0.48% रहा है। सो इनहेरेंटली हमने कहा कि रिटेल में एक्सपोजर सेफ है, और रिटेल में ज्यादा सेफ है अनसिक्योर्ड कैटेगरी, सिमिलर टू व्हाट बजाज फाइनेंस इज डूइंग कंज्यूमर लोन्स। तब हमने चाहा कि हम लिक्विड लोन्स की शुरुआत करें और इंडिया को दें सबसे पहला रिटेल डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। पर रुकिए, मैं सिर्फ रिटेल नहीं कह रहा हूं, यहां मैं कह रहा हूं प्राइम रिटेल। प्राइम रिटेल होता क्या है? अब जैसे आप पहले
ट्रेडिशनल लेंडिंग करते थे, आप बैंक जाते थे, म्यूचुअल फंड जाते थे, एनबीएफसी जाते थे, जो पैसा कॉर्पोरेट्स को देता था। और उस कॉर्पोरेट्स में भी आप तो चाहेंगे कि मेरा पैसा सेफ रहे, मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल ए एंटिटी करूं या डबल ए एंटिटी करूं, या उससे वर्स्ट केस में मैं एक क्वालिटी के एंटिटी में पैसा दूंगा, पर उसके नीचे तो नहीं दूंगा। पर रेटिंग तो वहां खत्म नहीं होती, कंपनीज आर रेटेड डीप डाउन टिल डी क्वालिटी विच इज कॉल्ड जंक। आप तो बोलोगे मेरे को यार जंक वाला एक्सपोजर लेना नहीं, हमेशा सेफ वाला लेना है। अब मैं बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट से सेफ रिटेल है, पर उसमें भी आप चाहेंगे कि मेरे को तो सेफेस्ट पोर्टफोलियो बने। तो रिटेल में सेफ आदमी की पहचान कैसे होगी? थैंकफुली जैसे मैंने कहा, जब जब आपने, मैंने, किसी ने भी लोन लिया, किसी ने भी क्रेडिट कार्ड लिया, जब जब इसकी भरपाई की, ये सब डेटा बैंक और एनबीएफसी को मैंडेटोरली सिबिल, एक्सपीरियन और क्रिफ को जमा करना पड़ता था। रेगुलरली जब जब हम भरते, दे वुड सी दैट वी हैव एबिलिटी टू रीपे एंड वी हैव इंटेंट टू रीपे। अगर ये दोनों चीज होती तो हमें ये 300 से 900 के स्केल पे एक स्कोर देते। जिसकी ज्यादा एबिलिटी और ज्यादा नियत अच्छी है उसको 900 की तरफ ले जाते, और जिसकी खराब इंटेंट या एबिलिटी नहीं है या डिले डिफॉल्ट किया है उसको 300 की तरफ ये लोग स्कोर देते। विच मीन्स कि एवरेज 700 प्लस का जो स्कोर वाला बोरोवर है, इसकी नियत भी बहुत अच्छी है, एबिलिटी भी है और डेमोन्स्ट्रेटेड हिस्ट्री है पैसा चुकाने की, राइट। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे बट ऑब्वियस आप ज्यादा रिस्क लेंगे। तो हमने कहा लिक्विड द्वारा क्या हम आपको सिर्फ प्राइम बोरोवर जिसका एवरेज क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है उसका एक्सपोजर लाके दें? विल इट नॉट बी अ वेरी गुड ट्रिपल ए इक्विवेलेंट पोर्टफोलियो ऑन द रिटेल साइड? और हमने कहा बजाज फाइनेंस की तरह छोटे टेन्योर के लोन्स करते हैं, 12 महीने से कम, छोटे टिकट साइज के लोन करते हैं, एवरेज 40-50 हजार, तो पोर्टफोलियो सेफ बनना चाहिए, राइट। पर मैं कहता हूं नहीं, तो भी नहीं बनेगा। अब आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है? बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्ल्ड मिल रहा है, इधर तो रिटेल मिल रहा है, उसमें भी सबसे अच्छे वाले मिल रहे हैं, उसमें भी छोटे टेन्योर के लोन्स हैं जो ये कह रहे हैं सेफ होंगे, तो इसमें सेफ्टी क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि कि अच्छा अंडरलाइंग पोर्टफोलियो होने से प्रोडक्ट सेफ कभी नहीं बनता। नहीं तो कभी कोई ट्रिपल ए डेट फंड में पैसा ही नहीं खोता। अब ट्रिपल ए डेट फंड में पैसा क्यों खोया आपने? कोई कहेगा दीवान हाउसिंग की वजह से खोया, कोई कहेगा मेरा तो IL&FS की वजह से गया, पर ये पार्शियली करेक्ट है, टोटली करेक्ट नहीं है। आपने पैसा इसलिए खोया क्योंकि फंड मैनेजर ने उस दीवान हाउसिंग या IL&FS में 6%, 8%, 10% एक्सपोजर ले लिया था। अब वो एक्सपोजर 0.5 होता तो नहीं टूटता पैसा। विच मीन्स आपको अच्छे से अच्छे बोरोवर्स में भी कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे ही आप ये पैसा 150, 200, 300 बोरोवर में बांट दे, वेर योर एक्सपोजर अच्छे से अच्छे एक बोरोवर में इज लेस देन 0.5% ऑफ योर इन्वेस्टेड कैपिटल, जिसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपया भी लगाया, अच्छे से अच्छे प्राइम बोरोवर में आपका एक्सपोजर 0.5% से कम, तो ऑटोमेटिकली डिवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिस्क और कम हो जाएगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट वी इंटेंडेड टू डू। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम श्योर स्वप्निल जी एवरीबडी विल आस्क, प्राइम बोरोवर आएगा ही क्यों आपके पास? सब लोग जो कॉल पे हैं वो तो प्राइम बोरोवर है, किसी का 750, किसी का 800, किसी का 850 का क्रेडिट स्कोर है, उनको लोन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और लेट्स अज्यूम करें कि लोन की जरूरत भी पड़ी तो खुद के बैंक में उनको कितनी बार प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मांगते आज की तारीख में, बोलते हैं सिर्फ बटन दबाइए नेट बैंकिंग पे और पैसा ले जाइए, राइट। तो आप कैसे मेरे ग्राहक बनेंगे, राइट। वर्स्ट केस आपका बैंक आपको लोन ना भी दे तो आप बाजू वाले बैंक में चले जाएंगे, आप शायद कोई एनबीएफसी में 1-2% महंगे पे भी पैसा उठा लेंगे, पर मेरे पास क्यों आएंगे, राइट। तो कैसे लाऊंगा मैं अच्छे बोरोवर्स, कैसे आपकी मदद कर पाऊंगा, कैसे आपको डिवर्सिफाई करके दूं? वी सेड इसमें भी कोई जादू करने की जरूरत नहीं है, हम बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल यूज करेंगे। आई एम श्योर सभी ने बजाज फाइनेंस सुना है, देखा है। कहाँ देखा है? क्रोमा में, विजय सेल्स में, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट में, छोटे बड़े दुकानों में। बजाज ने क्या किया? बजाज ने कहा कि मैं बैंक से कंपीट कैसे करूंगा। बैंक पहले के जमाने में आपको बोलता था आइए लोन अप्लाई कीजिए, प्रोसेस करूंगा, इवेल्युएट करूंगा, फिर ऐसा अप्रूव किया तो पैसा दूंगा। वो पैसा लेके आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने जाते थे पुराने जमाने में। बजाज ने कहा ये पूरा जर्नी में काट दूंगा, आप जहां प्रोडक्ट या सर्विस लेने जा रहे हैं मैं वहीं के वहीं आपको लोन उपलब्ध कराऊंगा। कैसे? नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा से, कि आप अच्छे बोरोवर हैं तो मुझे आपसे नहीं कमाना, मैं आपको नो कॉस्ट ईएमआई, आई एम श्योर एवरीबडी ऑन द कॉल कहीं ना कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म पे नो कॉस्ट ईएमआई देख चुके हैं, राइट। तो बजाज ने कहा मैं आपको नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। पर किसको? अच्छे बोरोवर को, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सेविंग्स अच्छा है, नियत अच्छा है, इंटेंट है, हिस्ट्री स्ट्रांग है, उन लोगों को।
तो अगर बजाज बोरोवर से ब्याज नहीं कमा रहा तो बजाज कमाता कहां से है? बजाज कमाता है प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली। और सेम चीज हमने करी एजुकेशन फाइनेंसिंग में, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग में, होम डेकोर में। आज की तारीख में 200 से ज्यादा टाई अप हमने कर लिए हैं। अब ये लोग के 20 से लेके 200 आउटलेट्स हैं, या किसी का ऑनलाइन प्रेजेंस है तो पैन इंडिया प्रेजेंस है। अब कैसे कैसे ग्राहकों के साथ या वेंडर्स के साथ काम करते हैं? नरसिंह मोंजी, अपग्रेड, एपटेक, एनआईआईटी, क्वांट इंस्टीट्यूट, ग्रेट लेक्स, हेल्थ केयर में बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर बत्रा, रिचफील्ड, आईवीएफ में टॉप 4 इंडिया के नोवा, मॉर्फियस, इंदिरा, क्लाउड9, लाइफसेल, माइकॉट जैसे सबसे बड़े स्टेम सेल बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, होम डेकोर में लिव स्पेस, हेल्थ केयर में अगर आपको पॉलिसी लेनी है तो पॉलिसी बाजार के थ्रू नो कॉस्ट। तो ये सब वेंडर्स के फायदे हैं। क्या कि जब आपको और मुझे लोन चाहिए होगी इन रियल लाइफ में, हम बैंक जाएंगे, एनबीएफसी जाएंगे। कौन जाता है डॉक्टर बत्रा, नोवा, आईवीएफ लोन लेने? कोई नहीं, राइट? विच मीन्स आपको तो पता भी नहीं था कि वहां लोन मिलता है। तो यहाँ कौन जा रहा है? या वही ग्राहक जा रहा है जिसको यहाँ इनकी सर्विस लेनी है, पर इनको पता नहीं था कि यहाँ लोन मिल रहा है। ये तो पूरा पैसा लेके गए थे कि डाउन पेमेंट भरेंगे और पूरा फिर सर्विस लेते रहेंगे, राइट? अब ये लोग वहां गए हैं, ये कौन लोग हैं? जो विंडो शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। ये क्रोमा थोड़ी है कि वहां मोबाइल देखा और फिर घर जाके अमेजोन से ले लिया। यहाँ लोग जाते हैं तो विंडो शॉपिंग भी नहीं करना चाहता, विच मीन्स ओनली इफ आई हैव अ स्पेसिफिक नीड तो मैं सर्विस सेंटर्स में जाऊंगा, मेरी सर्विस परचेज करने जाऊंगा। पर अब ये टाइप्स द्वारा हमने भी नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा उपलब्ध की। अब जब मैं आपको बिगर ब्याज की लोन या पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी और एबिलिटी दूंगा तो आप क्या नहीं लेना चाहेंगे? बट ऑब्वियस लेना चाहेंगे। आप बोलोगे यार अगर ₹1,00,000 की सर्विस है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं पूरा ₹1,00,000 अपफ्रंट भर दूं, या फिर नो कॉस्ट लेके सिर्फ 20-30% अपफ्रंट भर के बाकी का पूरा पैसा टुकड़े टुकड़े में भरूं। तो आप सेकंड वाला चॉइस ही लेंगे कि अपफ्रंट पैसा क्यों ब्लॉक करूं, बस किस बैंक में भी रहने दिया तो 2% कमा लूंगा, राइट? तो वी सेड सेम तरह से इसके द्वारा वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट कंज्यूमर्स इन द कंट्री। जब जब ये लोग ये सेंटर्स या ये वेबसाइट्स पे आए, इनके कंज्यूमर्स को नो कॉस्ट की सर्विस उपलब्ध कराई और इनको डिलीजेंटली इनका इवैल्यूएशन किया कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका क्रेडिट रिपोर्ट खींचेंगे, बैंकिंग डेटा खींचेंगे, उससे आपका इनकम और सेविंग्स पता चलेगा, आप कहाँ काम कर रहे हैं, कितना सैलरी कमा रहे हैं, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, कौन से सिटी में है। ये सब चीज इवैल्यूएट करने के बाद हम आपको अप्रूव या डिसअप्रूव करेंगे। अब लेट्स अज्यूम अप्रूव करते हैं, और लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स अज्यूम स्वप्निल जी जाते हैं अपग्रेड कोई डेटा साइंस का कोर्स करने के लिए। अब वो कोर्स था ₹1,00,000 का, राइट? अब स्वप्निल जी के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो अपफ्रंट भरें या नो कॉस्ट में कन्वर्ट करें। स्वप्निल जी ने 3-4 डेटा पॉइंट दिए, उनका पैन नंबर, उनका सैलरी, कहाँ काम कर रहे हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, उनका ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। ये सब डेटा मिलते ही उनसे एक एडिशनल अप्रूवल लिया जाता है कि उनका क्रेडिट रिपोर्ट हम खींच सकते हैं कि नहीं। जैसे ही वो हाँ बोलेंगे तो डिजिटली ये सब डेटा खींचा जाएगा, रिपोर्ट ब्यूरो से खींचा जाएगा और हमारा एल्गोरिदम इसको रन करेगा। और फिर स्वप्निल जी की पूरी कुंडली मिल जाएगी थ्रू द क्रेडिट रिपोर्ट कि कैसे टाइप के लोन्स लिए, कब कब लिए, कब कब रिपे किए हैं, रेगुलरली रिपे किए हैं कि नहीं किए हैं, पूरा यूटिलाइज कर लिया लोन की थोड़ा ही यूटिलाइज किया। जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, बैंक ने तो 8 लाख की लिमिट दी पर हर महीने थोड़ी ₹8,00,000 स्वाइप कर रहे हैं। तो ये सब वेरियस पैरामीटर्स असेस करने के बाद द कंप्यूटर थ्रोज आउट अ क्विक समरी कि स्वप्निल जी के अच्छे पॉइंट्स क्या हैं और बुरे पॉइंट्स क्या हैं, एंड फिर अ मैनुअल अंडरराइटर टेक्स अ फाइनल कॉल वेदर वी वांट टू अप्रूव और डिसअप्रूव अ लोन। अब लेट्स अज्यूम मैं अप्रूव कर देता हूं स्वप्निल जी का लोन, और स्वप्निल जी अप्रूव हो गए, ₹1,00,000 की वो सर्विस थी। तो लेट्स अज्यूम स्वप्निल जी को 20,000 बोल दिया गया कि डाउन पेमेंट डायरेक्ट डीलर को जमा कर दीजिए, विच इज हिज स्किन इन द गेम, कि अभी तो सर्विस चालू भी नहीं हुई और उन्होंने ₹20,000 लगा दिया। अब बैलेंस हो जाता है ₹80,000, जिनको हम नो कॉस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और स्वप्निल जी को कहते हैं कि सिंपल एंड लोन एग्रीमेंट साइन करिए, और NACH ऑटो डेबिट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जो स्वप्निल जी हमें देंगे, जिसके द्वारा हर महीने जितना भी टेन्योर हो, लेट्स अज्यूम 10 महीने का टेन्योर है, हर महीने स्वप्निल जी का बैंक अकाउंट ऑटो डेबिट हो जाएगा ₹8,000 से। सिंपल टिल है। अब स्वप्निल जी इज हैप्पी कि ₹80,000 अपफ्रंट नहीं देना है, टुकड़े टुकड़े में देना है, वो भी बिगर ब्याज देना है। पैसा किसे कमाएंगे? पैसा कमाएंगे डीलर द्वारा या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर द्वारा, जैसे मैंने कहा। अब फायदा कैसे, कहां से होगा, मैथ समझाता हूं। तो स्वप्निल जी ने 80,000 का लोन लिया, वो पूरा 80,000 में स्वप्निल जी के बिहाफ पे डीलर को जमा नहीं करता। अब डीलर मुझे स्वप्निल जी को कन्वर्ट करने के लिए
मेरे को एक डिस्काउंट देता है, क्योंकि मैंने उनके लिए एक अच्छा ग्राहक लाके दिया, प्लस उनका प्रोडक्ट या सर्विस बिकवा के दिया। अब ट्रेडिशनल डेज में डीलर को ये अच्छे बोरोवर या एक कस्टमर को लाने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए सेल्स और मार्केटिंग करनी पड़ती। अब वो खर्चा उनका बच रहा था, तो वो हमें वो जो बच रहा है उसमें से हमें डिस्काउंट दे देते। टिपिकली डिस्काउंट इन ऑल ऑफ दीज सर्विसेज आर इन द रेंज ऑफ एवरेज 9 to 10%। अब सिंपल मैथ ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम 10% डिस्काउंटिंग उन्होंने हमें दिया। अब 80,000 के सामने फिर मैं 10% काट के सिर्फ 72,000 रुपया डीलर को दे दूंगा। अब डीलर खुश कि 20,000 अपफ्रंट डायरेक्ट कंज्यूमर से आ गया, 72,000 लिक्विड लोन्स के प्लेटफॉर्म द्वारा आ गया, जो है इन्वेस्टर का पैसा। अब उसने सर्विस देनी चालू कर दी। अब द ब्यूटी ऑफ दिस लोन इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ लेंडिंग टू अ रिटेल कंज्यूमर, कि उसकी नियत खराब है, फ्रॉड है, पैसा लेके भाग जाएगा, वो फ्रॉड ही एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि पैसा जो था 80,000 वो कभी स्वप्निल जी को गया ही नहीं, उनके बिहाफ पे 72,000 डायरेक्ट डीलर को जमा हो गए। अब डीलर दे रहा है स्वप्निल जी को एक सर्विस जो ना स्वप्निल जी ना कोई जिंदगी में बेच सकता है, प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है, राइट? सो द बिगेस्ट रिस्क ऑफ फ्रॉड गॉट एलिमिनेटेड। कमिंग बैक टू द कैलकुलेशन अगेन, 72,000 डीलर को दे दिया, पर स्वप्निल जी वापस कितना करेंगे? 80,000 रुपया, 8,000 इंटू 10 EMIs, विच मीन्स हमने दिया 72, वापिस पाया 80,000, विच मीन्स 8,000 रुपए की गेन हुई ऑन 72,000 रुपया। इसका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना छूटा? 11.1%। पर मैं कहता हूं सिर्फ रिटर्न इतना नहीं बना, रिटर्न यानी 23-24% बनता है, जैसे सालों से बजाज कमा रहा है। अब आप सोच में पड़ गए कि 23-24 बन कैसे रहा है? द ब्यूटी इज ऑफ कैश फ्लो कंपाउंडिंग। हर महीने जब EMI वापस आता है, सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि पहले महीने 8,000 रुपया वापस आया, अब वो बाकी 9 महीने बैंक में नहीं सड़ेगा, वापस एक नए कंज्यूमर लोन में रीफाइनेंस होगा, उसमें वापस डिस्काउंटिंग का बेनिफिट मिलेगा, उसका भी जो नेक्स्ट मंथ वापस कैश फ्लो आगा उसको भी वापस री इन्वेस्ट करेंगे, विच मीन्स हर कैश फ्लो जैसे जैसे वापस आता है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है, अलाउइंग द मनी टू कंपाउंड, जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज उपज करना, कि ये कंपाउंड होगा तो मेरा कंपाउंडिंग एनुअलाइज रिटर्न नियरली 23-24% बनता है। और इसी तरह सालों से बजाज आपको तो नो कॉस्ट EMI दे रहा है, पर आपके लोन में नियरली 23-24% कमा रहा है, और इसी की वजह से बजाज कंटिन्यूअली ग्रो कर रहा है, राइट? तो रिटर्न तो अच्छा बना, पर क्या ये रिटर्न बनाने के लिए हमने रिस्क किया? क्या मैंने स्वप्निल जी को बोला 20% रिटर्न या ब्याज चुकाई? नहीं, स्वप्निल जी ने तो 0 कॉस्ट लिया, उन तो लोन भी नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने तो लोन लिया बिकॉज ऑफ पेमेंट कन्वीनियंस, पर ये बना ग्रॉस रिटर्न। अब इस रिटर्न में से हमने कहा इन्वेस्टर को एक शेयर मिलेगा, थोड़ा पैसा हम रखेंगे फॉर अस टू रिकवर आवर वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, और फिर अगर कुछ बचेगा तो हम प्रॉफिट कमाएंगे, राइट? रिटर्न कितना मिलता है इन्वेस्टर को? जब जब कोई इन्वेस्टर ये प्लेटफॉर्म पे आता है तो हमें उन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट 8% से लेके 9-35% का एनुअलाइज रिटर्न हम उनको दे देते हैं, जिसमें जब तक इन्वेस्टर को वो कैपिटल और रिटर्न नहीं बनता तब तक हमारी कोई फी नहीं, कोई अपफ्रंट फी नहीं, कोई मैनेजमेंट फी नहीं, कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं। आप अपना मुद्दल और ब्याज कमा ले, उसके बाद अगर कुछ बचा तो हमारा। अब स्कीम्स क्या है? पहली जो स्कीम आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं, नील MHP स्कीम। MHP का मतलब मिनिमम होल्डिंग पीरियड, कंसिडरिंग ये नील है मतलब ये लिक्विड है, कि आज आके 10 दिन में निकालिए, 20 दिन में निकालिए, 50 दिन में निकालिए, 100 दिन में निकालिए, अप टू 365, पार्शियली विड्रॉ करिए या पूरा विड्रॉ करिए। इसमें आपको एनुअलाइज यील्ड मिलती है 8% की। अब आज सेम पैसा आप जब लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है 3, 3.25, ज्यादा से ज्यादा 3.5% साल का, ये आपको दे रहा है 8% साल का, which is 2.5 times more return. Then I have 5 schemes which are locked in schemes, 3 महीना, 6, 12, 24 और 36 महीना। जैसे जैसे आपको कैश फ्लो की विजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से इसमें पैसा डाल सकते हैं। जहाँ लॉट ऑफ पीपल कम बैक इन्वेस्ट इनटू अ 12 मंथ और अ 24 मंथ प्रोडक्ट, कि 1 साल की FD करनी थी या 1 साल का इन्वेस्टमेंट करना था, आज 12 महीने की प्रोडक्ट में नियरली 9.25% प्री टैक्स रिटर्न छूटता है, which is nearly 2 times of your traditional FD product. और उसके नीचे जो 3 स्कीम है, D.ADV, इट्स कॉल्ड डबल एडवांटेज स्कीम्स, जहां इन्वेस्टर मैक्सिमम यील्ड चाहने की कोशिश करता है, पर उसको ये नहीं पता कि शायद इमरजेंसी आ गए तो पैसा कैसे मिलेगा, मुझे लॉक इन भी नहीं करना, तो हमने कहा ये स्कीम में डाल दीजिए। अगर इमरजेंसी आई तो बाजू में जो टेबल बना है उसमें से जो रेट है उस हिसाब से आप विड्रॉ कर लीजिए, और बाकी अगर जो पैसा मेच्योरिटी तक रहा तो आप रहने दीजिए। एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेट्स अज्यूम स्वप्निल जी ने 24 महीने वाली स्कीम में 10 लाख रुपए लगाए, अब ही इज गोना अर्न 9% एनुअली,
पर लेट्स अज्यूम 15वें महीने में स्वप्निल जी को 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, इमरजेंसी आ गई। अब वो 2.5 लाख रुपया ईयर 2 में विड्रॉ कर रहे हैं 15वें महीने में, तो वो 8% के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। पर बाकी का 7.5 लाख रुपया तो उन्होंने पड़े रहने दिया, वो तो उनको जरूरत नहीं थी, वो 9% पे अक्रू हो रहे हैं। ये डबल बेनिफिट हो गया कि जितना पैसा मैच्योरिटी तक रुका उस पर 9% बनेगा, अगर कुछ बीच में विड्रॉ किया तो जो रेट्स इधर मेंशन है उस पर विड्रॉ कर सकते हैं। And the good part is for trying this out, you can start with as small as 50,000 rupees and you can invest as high as 50 lakh rupees per PAN card. So अगर आप HNI भी हैं, आराम से 4 से 5 पैन तो फैमिली में मिलेंगे, तो इजीली 2 से 2.5 करोड़ रुपया इजीली इसमें लगा देंगे। एंड देयर इज नो कंपल्शन की एक ही स्कीम लेनी है, आप डिवर्सिफाई भी कर सकते हैं। आप बोलो मेरे को 50 लाख लगाने हैं पर मेरे को 20 लाख रुपया उसमें से लिक्विड रखना है और बाकी के 30 लाख रुपया मुझे 15-15 लाख करके 6 महीने और 12 महीने में डालने हैं, अवेलेबल है। अगर आप बोलो मेरे को पूरा का पूरा 50 लाख लिक्विड रखना है तो भी अवेलेबल है। तो इन्वेस्टर्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस है और हर स्कीम में मंथली ब्याज की भी सुविधा है, राइट। सो एंड द गुड पार्ट इज ये रिटर्न्स नेट है, इसमें कोई टीडीएस भी नहीं करता, ये आपके हाथ में आएगा। फिर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है, आप जो टैक्स स्लैब में हो उसी के हिसाब से आपको टैक्स चुकाना है। ये हो गई रिटर्न की बात। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, सेफ्टी कहाँ लाते हैं, कैसे लाते हैं। थैंकफुली जब आरबीआई ने हमें लाइसेंस दिया तब आरबीआई ने कहा पूरा फंड फ्लो म्यूचुअल फंड की तरह होगा कि आपके जेब में पैसा नहीं आएगा इन्वेस्टर का, पैसा डायरेक्ट जाएगा एक थर्ड पार्टी एस्क्रो अकाउंट में और वो एस्क्रो मैनेज किया जाएगा एक ट्रस्टी द्वारा। अब जब ट्रस्टी के पास सब लोन डॉक्यूमेंट जाएंगे कि ये लोन्स अप्रूव हैं, वो बैंक में इंस्ट्रक्शन देगा और पैसा बोरोवर डेजिग्नेटेड अकाउंट जो भी डीलर के अकाउंट से वहां जमा हो जाएगा। पर जब बोरोवर से डैश के द्वारा पैसा आएगा वो अगेन हमारे पास डायरेक्टली नहीं आएगा, पहले एक एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा और उसमें से ट्रस्टी आपको आपका पहला ब्याज और आपका मुद्दल चुका देगा। उसके बाद लेट्स अज्यूम आपने आपका रिटर्न कमा लिया, मुद्दल कमा लिया, उसके ऊपर अगर कुछ एडिशनल रिटर्न बचा तो मेरी फी, नहीं तो मेरी फी 0, राइट। तो द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। द गुड पार्ट इज ट्रस्टी और एस्क्रो ना मेरी प्राइवेट एंटिटी है, ना कोई नॉर्मल प्राइवेट एंटिटी है मार्केट की IL&FS जैसी। These both entities are owned by Government of India and LIC, right? Second, the biggest benefit that I bring on the table is मेरी alignment. Unfortunately, आज तक कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहा। आज डेट फंड में पैसा डाला, वो तो हर मंथ अपना एक्सपेंस रेशियो काटता गया, अपनी जेब भरता गया, पर अगर एनपीए आया तो लॉस आपके साथ शेयर नहीं करेगा, वो आपका नया घटा देगा और आपको लॉस पास कर देगा। मैंने कहा कि जब तक आपको मुद्दल और ब्याज नहीं बन जाता, मेरी 0 कमाई। अब कौन से सिनेरियो में आपकी कमाई नहीं होगी? जब एनपीए आसमान छुएगा, पर आपका ग्रॉस रिटर्न तो आज 23% प्लस है। तो हमारा एनपीए क्या चल रहा है आज की तारीख में? ग्रॉस लेवल पे प्लेटफॉर्म का एनपीए चल रहा है 0.69%, वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। कोई बोलेगा दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, राइट? बट टू गिव यू एडिशनल लेयर ऑफ ट्रस्ट, वी वेंट टू क्रिसिल, वी वेंट टू इकरा, जो इंडिया की नंबर 1 और नंबर 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। इन्होंने जब अंडरलाइन पोर्टफोलियो को देखा तब इन्होंने ओपाइन किया कि वर्स्ट केस एनपीए ये पोर्टफोलियो में, क्रिसिल ने कहा 1.68 to 2.06% आ सकता है और इकरा ने कहा 0.94 से 1.17 आ सकता है। अब हम कहते हैं कि लेट्स अज्यूम ये एनपीए अगर आता भी तो क्या आपका पैसा टूटता? द आंसर इज नो। अब मैं कह रहा हूं, आप बोलोगे क्रिसिल को यार इवैल्यूएशन इतना नहीं आता, इससे दुगना आ सकता है, 2 का 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तिगना हो सकता है, राइट? मैं बोल रहा हूं कि क्रिसिल का 6 गुना भी हो गया या इकरा का 11 गुना भी हो गया, विच इज 600% मोर और 1100% मोर, तो भी इन्वेस्टर का एक भी रुपए का ब्याज और मुद्दल नहीं जाएगा। और ये मैं सिंप्लीफाई करके मैथ में नीचे समझा दिया है कि लेट्स अज्यूम स्वप्निल जी ने 100 रुपया डाला, ये 200-300 बोरोवर से नियरली 23% कमा रहे थे वाया सबवेंशन। अब लेट्स अज्यूम कि क्रिसिल का वर्स्ट केस एनपीए आया 2% का, तो बट ऑब्वियस वो 23 नहीं कमाएंगे, नेट ऑफ एनपीए 20-21 कमाएंगे। आप बोलोगे 2 नहीं 3 होगा, 3 नहीं 4 होगा, 4 नहीं 5 होगा, तो 23 के बदले लेट्स अज्यूम 16-17 कमाएंगे। पर उस 16-17 में से पहला अप टू 9.35, 8 से लेकर 9.35 तक की स्कीम है, वो इन्वेस्टर का है, तो वो पैसा तो भी स्वप्निल जी का बनेगा। पर अगर एनपीए बढ़ेगा तो हिट कौन ले रहा है? फिर स्वप्निल जी को तो मिल नहीं रहा है ये हिट जा रहा है मेरी जेब से, क्योंकि मैंने कहा कि 9.35 के ऊपर जो भी रिटर्न बनेगा वो मेरा है, राइट? मैंने बोला आप अपना कैपिटल रिटर्न ले लीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो मेरा है, जिससे मैं अपना वर्किंग कैपिटल कॉस्ट निकालूंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा, राइट? विच मीन्स कि अगर एनपीए बढ़ता गया तो मेरे प्रॉफिट शेयर से वो कम होते जा रहा है।
अब इसके लिए नाउ आई हैव टू बी अलाइंड विथ यू कि अगर मुझे भी अपना वर्किंग कैपिटल अगर रिकवर करना है, मुझे भी 2 पैसे कमाने हैं, इनमें प्रॉफिट कमाना है, देन आई हैव टू एंश्योर एनपीएस कम से कम हो। उसके द्वारा ही आप अपना कैपिटल रिटर्न बनाएंगे और मैं भी डिसेंटली वर्किंग कैपिटल रिकवर करके प्रॉफिट्स कमाऊंगा। हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि इवन आफ्टर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पेंडेमिक व्हिच वाज अनफोर्सीन, वी आर द ओनली पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म इन द कंट्री व्हिच इज प्रॉफिटेबल। अब ये कहता है अगर मैं प्रॉफिटेबल हूं तो हर एक इन्वेस्टर ने आज तक पूरा मुद्दल और ब्याज कमाया है। We till date don't have even one investor who has even lost 1 rupee of interest, and that is a mark of a very good fixed income instrument even after the most turbulent times of the pandemic. Additionally, हम आपको क्या देते हैं? ट्रांसपेरेंसी। कि आपको पता तो होना चाहिए आपने पैसा किसको दिया। कितनी बार आप पैसा लगा देते हो कोई प्रोडक्ट में, पर आगे कौन वो किसको दे रहा है पता ही नहीं है। शायद इंटरमीडियरी को रिस्क ले रहता है आपके पैसे से। पर हमने कहा आप सतर्क बनिए, जानिए कितने जन में आपका पैसा बटा है, क्या एवरेज क्रेडिट स्कोर ये सब बोरोर का, हर बोरोर की डिटेल्स, कहाँ काम कर रहा है, उसका इनकम कितना है, उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, कितने का उसने लोन लिया है। टेक एन एग्जांपल, जो बॉटम लेफ्ट में टीसीएस में बंदा काम कर रहा है, 850 का क्रेडिट स्कोर है, उसने 2 लाख रुपए की लोन ली है, जहां उसकी मंथली इनकम ही लाख रुपए से ज्यादा है, राइट। पर आपका एक्सपोजर वो अच्छे से अच्छे बोरोर में कितना, लेस देन 0.5% ऑफ योर कैपिटल। तो यहाँ जो सैंपल है वहां इन्वेस्टर ने 6 लाख रुपया लगाया और उसने टीसीएस वाले बोरोर को सिर्फ 2600 रुपए दिए। सो नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग हिज कैपिटल एट ऑल। अब ये ट्रांसपेरेंसी 24/7 into 365 आपको मिलेगी ऑनलाइन लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा। आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, रात को 3 बजे भी देखना है तो देख सकते हैं, राइट। अब आप कहेंगे मैं तो सालों से एफडी करता हूं, बॉन्ड करता हूं, डेट फंड करता हूं, एनसीडी करता हूं, तो लिक्विडेंस क्यों बेहतर है? एक तो बट ऑफ इस रिटर्न और लिक्विडिटी के मामले में हम बेटर है, राइट। रिटर्न 8 से 9 35 है, लिक्विडिटी हाईएस्ट है। जो लिक्विड फंड में विड्रॉ करते हैं T+2 में कभी भी पैसा ले जा सकते हैं। पेंडेमिक में जब 2 लोअर सर्किट लगी तब भी जिस भी इन्वेस्टर ने पैसा निकाला पूरा पैसा ब्याज के साथ एक्यूरेटली T+2 में मिला। ये तो बहुत महत्व की चीज है जो आप देखते हैं, पर और महत्व की चीज है कि रिस्क कैसे कम करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट में रिस्क कम करने के लिए 5 चीज की आवश्यकता है। एक, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि रिटर्न पहले आपका और लॉस आया तो पहले मैं भुगत रहा हूं। और ये मैं सिर्फ जवानी नहीं कह रहा हूं, हर एक इन्वेस्टर के अग्रीमेंट में क्लियरली एक डिमार्केटेड क्लॉज है जो ये लिखता है और ट्रस्टी इंश्योर करता है कि आपको पहले आपका पैसा और मुद्दल मिलेगा, उसके बाद मुझे 1 भी रुपया कोई भी फी मिलेगी। सेकंड, रिस्क कम किया जाता है डिवर्सिफिकेशन से। तो आज AAA डेट फंड में भी डिवर्सिफाई करके आप पैसा नहीं कमाए, क्योंकि इंडिया में AAA हैं कितने जो बोरो करते हैं, 30 40 50, उसके बियॉन्ड फंड मैनेजर कभी डिवर्सिफाई नहीं कर पाया। पर यहाँ कोई ऐसी लिमिट ही नहीं है, मैं 150 200 400 500 बोरो में आपका पैसा स्प्लिट कर सकता हूँ, देयर बाय गिविंग यू मोर सेफ्टी। थर्ड, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क होता क्या है? किसको दे रहे हो, अच्छे को दे रहे हो, बुरे को दे रहे हो, कॉर्पोरेट को दे रहे हो, रिटेल को दे रहे हो। हमने कहा कॉर्पोरेट तो करना ही नहीं है, करते हैं रिटेल, जो हमेशा HDFC और बजाज करते हैं वैसा। उसमें भी नॉन ग्रीडी लोग, जिनको लोन चाहिए उनको नहीं दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं जिनको लोन नहीं चाहिए, जिनका क्रेडिट स्कोर 700 के ऊपर है, और उनको लोन दे रहे हैं नो कॉस्ट के द्वारा, राइट। फोर्थ, इंटरेस्ट रेट रिस्क। आई एम श्योर लास्ट ईयर जब पेंडेमिक हिट हुआ आपने वॉलेटिलिटी देखी, सिर्फ डेट मार्केट में ही नहीं, इक्विटी मार्केट में भी देखी, राइट। अब डेट मार्केट में YTMs ऊपर नीचे गए, M2M लॉस आया, एक्चुअल लॉस भी किसी ना किसी ने बुक किया अगर कोई पैसे की जरूरत पड़ी तो। हमारे प्रोडक्ट में कोई M2M लॉस, इंटरेस्ट रेट रिस्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं। इंटरेस्ट रेट्स आधे हुए हैं, उसके आधे हुए हैं, मार्केट वॉलेटाइल हुए, हमारा कोई कोरिलेशन ही नहीं है। आपने जो टेन्योर में जो पैसा लगाया वो रिटर्न आप पाएंगे, सिंपल। और द सेफेस्ट सेफगार्ड इज एसेट क्लास एक्सपोजर। सिर्फ रिटेल कर रहे हैं इसलिए आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लिक्विड लोन्स के पास सबसे ज्यादा है। तो एज आई सेड, व्हाई शुड यू श्योरली इन्वेस्ट? समिंग दिस अप, अनकोरिलेटेड टू इक्विटी एंड डेट मार्केट्स, तो कोई वॉलेटिलिटी नहीं, कोई M2M नहीं, कुछ नहीं। अंडरलाइंग पोर्टफोलियो जो सालों से बजाज और HDFC बना रहा है, डिवर्सिफाइड, रिटेल, गुड क्वालिटी, टेकिंग नो कॉस्ट। जो ट्रेडिशनल रिस्क थे जिसकी वजह से आपने पैसा तोड़ा है शायद, वो रिस्क कम कर दिए। कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं, काउंटर पार्टी भी रिस्क नहीं, और चेरी ऑन द केक इज माय अलाइनमेंट, कम्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। आप अपना मुद्दल और ब्याज कमा लीजिए, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो मेरा। सो नाउ आई एम इंसेंटिवाइज कि मैं आपका रिटर्न और ब्याज कमा के दूं तो मैं शायद 2 रुपया कमाऊं। एंड दैट इज व्हाई इन द लास्ट 4 years D1 क्राइसिस आया, IL&FS क्राइसिस आया और पेंडेमिक आया, उसके बाद भी आई हैव 100% सक्सेस रेट। आज तक एक भी इन्वेस्टर ने 1 भी रुपया ब्याज भी नहीं खोया। एंड दैट इज ऑल यू वांट इन अ फिक्स इनकम पोर्टफोलियो, कि प्रिंसिपल सेफ रहे, रिटर्न बनता रहे, इन्फ्लेशन बीट होता रहे, कैश फ्लो और लिक्विडिटी मिलती रहे,
ज्यादा रिटर्न चाहेंगे तेरा बेटर एसेट क्लासेस, आप इक्विटी कर सकते हैं, डेट कर सकते, रियल एस्टेट कर सकते हैं, पर डेट में आपको सेफ्टी चाहिए और हम इसलिए सेफ्टी लाके दे रहे हैं. दैट इज क्विकली अबाउट लिक्विड लोन्स फॉर यू. थैंक स्वप्निल जी, यू. I'll be happy to take in questions. यस, थैंक्स अ लॉट आगम फॉर ये पूरा डिटेल में आपका पूरा प्रोसीजर बताने के लिए, एंड टू आल्सो talk about the investment options available. So now for all the people over here, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ सकते हो. आप चैट बार में भी डाल सकते हो, बट वी आर हैप्पीली, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ. I take the privilege to ask first. Yes, Neeraj, please go ahead. Yeah, thanks. Basically, what should be the horizon? Like, if you are having a short-term parking, like 15 days, 20 days, the money lies like that. So, वो भी कर सकते हैं या we should have something like a 3-6 months का time horizon? No, sir. So, if you have a shorter duration, which is minimum of 10 days and a little higher, अब 15 दिन भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है. Shorter duration में park in the nil MHP scheme, which is liquid, right? कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद जब जरूरत पड़ी, पार्शियल जरूरत पड़ी या पूरे के पूरे पैसे की जरूरत पड़ी, वो आप निकाल लीजिए. जितने दिन पैसा रहा वो 8% एनुअलाइज के हिसाब से आपको रिटर्न देगा. आज वो पैसा शायद सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो 2%, 2.5% कमा रहा है, या लिक्विड फंड में पड़ा है तो 3, 3.25 कमा रहा है, या फॉर दैट नंबर ऑफ डेज 8% के हिसाब से कमा के देगा. और ये 8% जो है ये ऑलमोस्ट सर्टन है या कुछ डेविएशन रह सकता है? So these rates keep on changing on a monthly basis for new incremental funds. Okay, but let's assume आज आपने ₹1,00,000 8% पे डाल दिया फॉर एग्जांपल. अब आप 15 दिन बाद ना भी निकालें, ठीक है, आप 6 महीने रहने दीजिए, 1 साल तक रहने दीजिए, आपका 8% कंसिस्टेंटली फॉर दैट पीरियड बनता रहेगा. अब लेट्स अज्यूम नेक्स्ट महीने मैंने ये रेट 8.00 से 7.99 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो अब नए पैसे पे 7.99 विल अप्लाई, पर आज डाला हुआ पैसा फॉर नेक्स्ट 1 year विल अक्रू एट 8%. So the whatever rate we are entering is valid only for 1 year. Yes, for the liquid product. बाकी स्कीम्स तो वेल डिफाइंड टेन्योर्स हैं, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने. तो लेट्स अज्यूम आपने 3 महीने में कोई पैसा डाला तो 8.6 के हिसाब से आप कमाएंगे. अब 3 महीने बाद दिस 8.6 कैन बी 8.5 और 8.7. देन यू हैव एन ऑप्शन टू रिन्यू, कि अगर आपको वापस रिन्यू करना है तो आप 8.7, 8.5 जो भी रेट हो उस रेट पे कर सकते हैं, या तभी आप स्विच करके वापस लिक्विड में डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, या आप लंबे लॉक इन में जाना चाहें वो भी कर सकते हैं. सो ऑल दैट ऑप्शन विल बी मेड अवेलेबल टू यू. इसमें और एक क्वेश्चन आगम, रिडम्पशन कितने दिन में पे आउट हो जाएगा इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में? Yes, so any and all redemptions from the liquid product gets paid out in T+2 working days, right? And redemptions have to be placed on a working day before 3 o'clock, similar to how mutual funds operate. Okay, thank you. That's it. Thank you. My pleasure, sir. एक और क्वेश्चन है आगम कि इसमें टीडीएस होता है क्या? As I said, कोई टीडीएस नहीं कटता, because as I said, पैसा मेरे बैलेंस शीट पे तो नहीं आ रहा, तो मैं टीडीएस काट नहीं सकता. और आपका पैसा जा रहा है रिटेल बोरोवर्स में जो टैन ऑडिट में नहीं आते, तो वो भी टीडीएस नहीं काटते हैं. तो इट बिकम लाइक अ पास थ्रू, कि पूरा जो रिटर्न आया उसमें से पहला 8 से 9% इन्वेस्टर को चला जाएगा, राइट? तो कोई टीडीएस इंप्लीकेशन नहीं है. जो भी रिटर्न आया नेट आपके हाथ में आया, आप जो टैक्स स्लैब में उस हिसाब से टैक्स भरिए. एक और कौन सी इनकम में जाएगा आगम? ये कौन सी इनकम में जाएगा? ये कौन सी इनकम में जाएगा? मतलब आप क्या उसको रेंट ट्रीट करेंगे? This income will be from other sources. This is like your interest income that you earn, similar to what you earn in an FD. Okay. एक और क्वेश्चन था आगम, इन बिटवीन कैन एनआरआईज इन्वेस्ट इनटू दिस? Yes, I'll actually give you the list of who all can invest, right from an individual, HUF, private limited companies, partnerships, LLPs, societies, private trusts, and NRIs from their NRO account can make an investment on the platform. Okay. In case of NRI also there is no TDS. कोई TDS नहीं करता. ग्रॉस मींस द नेट रिटर्न्स है उनके खाते में जमा हो जाएंगे. Vineet here. Hi Vineet. Hi. Sir, एक situation है. Suppose if you have excess fund and if you don't have हमने clients, customers to lend the amount. So Yes. in that case, what you do, like अगर कोई same time में आपको अगर funds आ रहे हैं but आपके पास में mismatch है, if you don't have customer ahead. Absolutely. So what you do? You stop the FD or like? No, brilliant question, and
take that. One, what is the scenario कि आगे demand नहीं होगा, right? Currently, the partners that are working with 200 odd partners. The good part is when we start with a partner, we also reduce risk at the partner level, which means हर partner का exposure is capped at less than 5%. So I'll give you an example to explain. So let's assume my first convert actually was Dr. Batra. He has more than 77 clinics in the country. अब मैं वो सब 77 में नो कॉस्ट अवेलेबल नहीं कराता आज की तारीख में. मैं स्टार्ट किया हूँ 3 क्लिनिक से, फिर 5 पे जाता हूँ, फिर 7 पे जाता हूँ, फिर 10 जाता हूँ. As and when my book keeps on increasing, which means I have enough penetration power with the existing set of partnerships, even if कल दुगना या तिगना भी पैसा है. Clear? Secondly, let's assume a doomsday scenario like pandemic. कि actually जो offline stores थे वो तो बंद ही हो गए, लॉकडाउन था, right? तब पैसा कहाँ, वो सब सेगमेंट में तो बट ऑफिस डिप्लॉय नहीं होगा, ऑनलाइन एजुकेशन वो सब में तो इजीली खप जाता था, राइट? उस सिनेरियो में वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द पास्ट कि मैं कोई स्कीम बंद कर दूंगा जहां मैं पैसा लेता था, राइट? So that I don't take excess money on the platform because I don't have that deployment opportunity. Unlike a traditional peer-to-peer platform जो पैसा लेके expense ratio या upfront fee कमा लेता था, मेरे ऐसी कोई income ही नहीं है. So I am in the benefit of the investor will not take monies for a shorter period of time. As soon as there are opportunities up again, I will open the platform to take inflows. Okay. Fine. My pleasure, sir. Agam, yes, sir. Agreement का exact nature क्या है? मतलब what all things are covered in the agreement which the investor is signing with you? Because I'm sure most of us probably won't even go through it. So for the benefit, क्या-क्या चीजें इसमें लिखी होती है? Yes. So I'll tell you, the agreement is simply how you come on board as an investor or a lender on the platform. It's called the lender registration event. अब ये one time exercise है. The lender specifies कि first of all as a lender how much can you invest or lend on the platform, which I mentioned कि up to 50 lakhs per PAN card is maximum across all peer-to-peer platforms, right? तो मेरे वहां अगर आपने 50 कर दिया तो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे, या कहीं और 10 लाख किया है तो मेरे वहां मैक्सिमम आप 40 कर पाएंगे, right? Plus you have to be an adult to make a lending transaction. Plus clearly, as I said, there are 2 models that investors can offer कि खुद आके marketplace पे borrowers देखें, evaluate करें और उसको lend करें, जो आज तक किसी ने नहीं लिया. अब ये क्यों नहीं लिया? Because not everybody is a credit underwriter, और ना किसी के पास टाइम है कि 200-300 borrower में diversify कर पाए अपना पैसा. वो करने के लिए एटलीस्ट 600-800 प्रोफाइल्स देखनी पड़ेंगी, किसी के पास टाइम नहीं है. So they take our assistance as per our defined credit criteria that I mentioned. If there is a matching borrower, their monies will be lent out. Or categorically, the most important piece that every investor should see in that agreement is talking about my fee, right? I am aligned with you. कि जब तक वो फी, आपका कैपिटल और आपका रिटर्न नहीं बन जाएगा, मेरी फी 0 है. उसके बाद जो बचेगा वो मेरा, the alignment that I spoke of, categorically वो भी छुपा के नहीं है. It's in a demarcated box on page number 17 that every investor should read, giving them comfort कि what we are doing is in the benefit of the investor. Page number 17 talks about regulation कि हमारा ट्रस्टी कौन है, बैंक में कहाँ पैसा जाता है, मेरा compliance officer, all of that, the regular questions that typically come in any lending transaction. Okay. Just one more, like more on the interest, academic interest. Yes. Regarding RBI license regulations, what are the risk management disclosures or measures you have to go through? Yes. So when RBI gives the license, first of all, आज सिर्फ इंडिया में unlike हजारों regular NBFCs, सिर्फ 21 peer-to-peer NBFCs हैं. The reason for that is RBI was very, very critical when they were issuing these licenses कि पहले तो management and capability and capital है कि नहीं, पहले वो check करते थे. उसके बाद when you start lending, RBI was very clear that any money that I raise on my balance sheet in the form of either equity or debt, मैं भी आपके साथ lend नहीं कर सकता borrower को. ये क्यों ना बोला RBI ने कि अगर मैं अपना पैसा लेके आऊं, let's assume I could raise 100 crores of capital easily, अब वो मैं lend करूं और आपने 5 लाख रुपए लगाए, आपको ये ना लगे कि अच्छे वाले borrower मैंने रख लिए मेरे 100 करोड़ के एक्सपोजर के सामने और आपको मैं खराब borrowers दे रहा हूं. So one, I can't lend with you, right? Second, what RBI said is at any point of time, as I said, there are stringent rules that you can't lend more than 50,000 to one borrower. तो आप 10 लाख रुपए भी लाएं तो एटलीस्ट 20 दिन में बटना चाहिए थ्रू द प्लेटफॉर्म. दैट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. व्हाट वी थॉट इज ये 20 भी इनसफिशिएंट है, क्योंकि अगर डेट फंड में 40 में बटने के बाद भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क दिखा और पैसा टूटा तो एटलीस्ट हम इसलिए 200 में डिवर्सिफाई करते हैं. थर्ड, यू कांट गिव अ लोन मोर देन 10 lakhs the borrower can't take a total loan of more than 10 lakhs from any platform, nor can be the loans be more than 36 months. To reduce the risk, everybody has to have a recovery and collections team
so that if a borrower goes delinquent, तो आप रिकवरी सेटअप कर सकते हैं, कैश कलेक्शन एजेंसीज डिप्यूट कर सकते हैं, रेगुलर कॉलिंग, एसएमएस और एफर्ट्स जो है वो सब कर सकते हैं, so that you help the lender recover his money. Unfortunately, traditional peer-to-peer platforms were not aligned. They said हम upfront fee ले लेंगे, expense ratio ले लेंगे, फिर रिकवरी में मदद करेंगे, आया तो ठीक, नहीं आया तो लॉस आपका. We again changed around the whole ecosystem saying कि लॉस पहले मेरा, आपका पहले रिटर्न आप बना लें, उसके बाद अगर कोई बनेगा तो मैं 1 रुपया कमाऊंगा. So these were the basic guidelines that RBI brought out. I'll again be more than happy to share the detailed RBI circular on how and when the P2P licenses were issued and what are the requirements. But very clearly RBI wanted this product, which is the second product after an FD, which is investor facing, to be very, very secure. Why? Because they know कि retail investor कभी ज्यादा return की चाह में indisciplined हो जाता है, पूरा पैसा इधर झोंक देगा, right? So that's why RBI built an upper cap. कि आप 50 लाख से ज्यादा per pan नहीं कर सकते. This is practically the only product in the country which has an upper cap. All other products that you do have a lower cap. PMS में 50 लाख है, AIF में 1 करोड़ है, म्यूचुअल फंड में 500,000 रुपए, right? So RBI said कि stringent तरीके से बनेगा कि कोई long drawn loans ना दे दे, बहुत बड़ा लोन ना दे दे, एक ही जन को concentrated loan ना दे दे. Only then, if you are worthy enough to hold a license and can facilitate such trades, then you can get this peer-to-peer license. Thank you. Thanks. That helps. Thank you. Nikita, you can ask your question. Yes, Agam sir, thank you so much for coming with such a beautiful concept. But I would like, because mainly the concern is regarding long term. अगर हमने समझ लीजिए अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म कोई भी पर्पस या गोल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट कैसे यूजफुल रहेगा, क्योंकि सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न. तो सेफेस्ट ऑप्शन के लिए मतलब हम क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ना कि XYZ जो मार्केट में म्यूचुअल फंड है जो सेफ्टी रिलेटेड हमें एश्योरेंस देते हैं उसके. So that is what I covered and again cover it back. सेफ्टी कहाँ से मिलती है? एक तो आप किसको पैसा दे रहे हो वो डिफाइन करेगा सेफ्टी. अब आप बोलोगे मैं कॉर्पोरेट को दे सकता हूँ या रिटेल को दे सकता हूँ, राइट? अब मैंने दिखाया कि बड़े बड़े दिग्गज बैंक और NBFC ने कॉर्पोरेट्स में 4.5 गुना पैसा ज्यादा तोड़ा. Right? I'll again run you through everybody that slide. Right? तो मैंने कहा रिटेल सेफ है, तो मेरा प्रोडक्ट सिर्फ रिटेल एक्सपोजर देता है. That is point 1. Second, सिर्फ रिटेल से भी फायदा होगा? Answer is no. रिटेल में डिवर्सिफिकेशन की जरूरत है. अब आज इंडिया में 276 AAA रेटेड एंटिटीज है, राइट? पर बोरो सिर्फ 30, 40, 50 करती है. आपने कभी TCS, नेस्ले, HUL को देखा नहीं होगा बोरो करते हुए. Which means फंड मैनेजर कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ले रहा है, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लोगे तो भी पैसा टूटेगा, क्योंकि डेट में अपसाइड तो लिमिटेड है, डाउनसाइड अनलिमिटेड है. तो कॉन्सेंट्रेशन हटाने के लिए आपको डिवर्सिफाई करना पड़ेगा. और किसको लोन देंगे? उसको देंगे जिसको पैसे की जरूरत है, नीडी एंड ग्रीडी है, शायद वो नहीं चुका पाए, राइट? क्योंकि अच्छा बोरोवर को तो बैंक और NBFC से इजीली लोन मिल जाएगा. तो आप किसको लोन देना चाहेंगे? वही अच्छे बोरोवर को, राइट? सर मैं इंटरप्ट करूंगी बीच में, मतलब ऐसे कौन सी स्कीम्स है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल रहेंगे आपके इसके अंडर, वो अगर स्कीम्स पे आप रिफ्लेक्ट करके बताएं. आई विल शो यू द स्कीम. सो टिपिकली जिसको लॉन्ग टर्म करना है, 2 साल 3 साल के लिए पैसा रख देना है इसमें, तो ये 2 साल का नहीं, 2 साल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट more than 7 years, more than 7 years. So we don't have a scheme that is more than 3 years because you can't facilitate lending for more than 36 months. That is an RBI requirement. So लोग क्या करते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म करना है वो 2 या 3 साल की स्कीम ले लेते हैं. जब उसकी मैच्योरिटी आती है वापस वो 2 या 3 साल के लिए रिन्यू कर लेते हैं. अच्छा, ओके. आई वाज मेनली कंसर्न विद दैट कि मतलब लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर सेव करना है तो कैसे. So you can do that 3 year वाला renewal. So every 3 years you can keep on renewing your capital with us at whatever rates are applicable after 2 or 3 years, whatever the rates may be then. But get a safer portfolio, secure portfolio, and keep making nearly 2x return of whatever the traditional market returns are. Okay. Right? Okay. Yeah. Thank you. My pleasure. Agam sir. Yes, sir. Vineet here again. Yeah, hi, sir. Sir, I just have a question. If competition increases in your field, in your sector, so Yes. how are we prepared for it to save the margins and all? तो 2 चीज समझाता हूँ, एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ. दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Yes sir. हमारा, yes, sir. राइट, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक और सबसे अच्छा और प्यारा बैंक सबको HDFC लगता है, राइट? फंड मैनेजर उसके पीछे भाग रहा है, राइट? Correct. इतना बड़ा बैंक, इतना चहीता बैंक, डू यू नो व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ द ओवरऑल ट्रांजैक्शंस दैट हैपन इन द कंट्री? HDFC accounts for only 10% market share. Correct. Shocking,
which means the market is so huge, HDFC भी पूरा कवर नहीं कर पाता, right? Same happens with even a Bajaj Finance. आज बजाज फाइनेंस का 1,80,000 करोड़ का टोटल लोन बुक है, उसका कंज्यूमर लोन बुक नियरली 45-50,000 करोड़ है, राइट? अब ये जो सेगमेंट्स मैंने आपको दिखाए, इसमें एनुअल कंजम्पशन, नया कंजम्पशन हर साल इज मोटा मोटी 10 से 12 बिलियन डॉलर, नियरली 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है? अब बजाज फाइनेंस भी पूरा कैटर नहीं कर पाएगा, राइट? तो हर एक प्लेयर को थोड़ा थोड़ा बिजनेस तो इजीली मिलेगा। और मेन फायदा कहाँ होता है और क्यों मिलेगा धंधा, राइट? वेंडर भी सिर्फ बजाज के साथ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ बजाज के साथ काम करूं तो बजाज विल स्टार्ट डिक्टेटिंग टर्म्स टू मी, राइट? ही विल ट्राई टू बिकम ऑन मोनोपोली कि इतने ही बोरोवर करूंगा, इतना ही आपको लोन्स अप्रूव करके दूंगा और यही क्रेडिट स्कोर दूंगा, मींस यही क्रेडिट स्कोर वाले को दूंगा। अब वेंडर तो डजंट वांट टू लूज अ गुड कस्टमर, तो वो बोलेगा मैं सिर्फ एक बजाज को नहीं रखूंगा, मैं 5 NBFCs को रखूंगा कि आप अंदर में झगड़ो, मेरे को बेस्ट प्राइसिंग दो, बेस्ट सर्विस दो, एंड ऑफ द डे मेरे को कन्वर्जन दो, राइट? जो आज क्रोमा में होता है। आप क्रोमा जाते हो तो सिर्फ बजाज फाइनेंस नहीं होता, बोलता है बजाज फाइनेंस भी है, दूसरे भी, आप झगड़ लो, मेरा कस्टमर मुझे मिलना चाहिए, मेरा सेल होना चाहिए, जिसके भी द्वारा हो, आई डोंट केयर। दैट इज वेयर यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज कि आपको एंट्री भी मिलेगी अच्छे अच्छे वेंडर्स के साथ, उनके थ्रू ही आपको डिसेंट एलोकेशन भी मिलेगा कंज्यूमर्स। दैट्स व्हाई यू कीप ऑन स्केलिंग अप। ओके माय प्लेजर, थैंक्स। Agam, I have a question. Yes, sir. Do all the P2P companies in India work on the same Bajaj Finance model like you are working? No, unfortunately not. And that is why P2P काफी लोगों ने सुना ही नहीं है। As I said, P2P चालू तो 2012 में हुआ था, तो क्यों कभी किसी ने P2P सुना नहीं है, या सुना है तो उसको गाली देते हैं? क्योंकि ये लोग ट्रेडिशनल फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। इन्होंने यूएस का मॉडल रेप्लिकेट किया कि इन्वेस्टर्स ऑनलाइन आएंगे, बोरोवर्स ऑनलाइन आएंगे, एक दूसरे को जांचेंगे परखेंगे और फिर इन्वेस्टर बोरोवर को पैसा दे देगा। अब अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन पैसा पहले लेने आता कौन था? कोई नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अच्छे बोरोवर को तो सामने से 4 बार फोन आते हैं कि लोन ले लीजिए, हमके नेट बैंकिंग पे अवेलेबल है प्री अप्रूव लोन, तो उनको जब भी लोन चाहिए उनको इजीली मिल जाएगा और बैंक से सस्ता तो कोई देगा नहीं। तो फिर ऑनलाइन कौन जा रहा था पैसा ढूंढने? वही आदमी जा रहा था जिसको बैंक के NBFC रिजेक्ट कर रहा था कि या तो उसका इनकम खराब है या क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, इसलिए लोग 18%, 24%, पहले तो 36% में पैसा लेने जाते थे, राइट? अब इतने महंगे ब्याज पे कोई पैसा उठा रहा है, हाउ मेनी बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स कैन जनरेट दैट काइंड ऑफ इनकम ऑन एन एनुअल बेसिस? वेरी फार एंड फ्यू, विच मींस अगर आप इतने महंगे ब्याज पे पैसा देंगे, आप 100% ज्यादा रिस्क लेंगे, राइट? एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टर हैड अ सार एक्सपीरियंस बैक इन द डे कि शायद पैसा ही नहीं आया वापस, मुद्दल भी नहीं आई, ब्याज भी नहीं आया, इसलिए ओवरऑल P2P कभी बड़ा नहीं हुआ। But that is when we entered in 2018 and understood कि asset class को safe बनाना पड़ेगा। You can't introduce a new asset class with the riskiest type of borrowers. You should get the best of best borrowers. But ये लाने के लिए the only model that works traditionally, successfully is the Bajaj Finance model. कि 700+ credit score वाले लाओ जिनकी validated history है पैसा चुकाने की। They have ability, they have intent, और ये तभी लोन लेंगे जब मैं बैंक से सस्ता दूंगा, राइट? नहीं तो वो अपने बैंक चले जाएंगे। तो मैंने कहा नो कॉस्ट EMI से उपलब्ध कराते हैं, दैट इज द ब्रिलियंट मॉडल। बोरोवर से तो रुपया ही नहीं कमाते हैं डीलर से, जिसके पास मार्जिन तगड़ा है, वो अपना मार्जिन शेयर कर देगा तो ऑटोमेटिक रिटर्न बनेगा। एंड दैट इज व्हाई वी हैव डिफरेंशिएटेड आवरसेल्व्स एंड हैव नाउ बीन द ओनली प्रॉफिटेबल एंटिटी इन द कंट्री। Understood. I have lot of questions because जैसे मैंने लोगों से बात किया, I have got, but I'm still waiting कि अगर कोई participants में से किसी को पूछना है तो I'll prefer कि वो first पूछे। Yes, sure. Please feel free to raise your hand or unmute yourself and ask a question. Yeah, hi Agam. Hello, sir. I'd like to ask a question. Yes, so, sir. in this peer-to-peer lending, what's the kind of funds that are involved today? Meaning, what's the kind of? I was about to take everybody here. So as on 31st December, we have disbursed a cumulative of 830 crore rupees. As I said, my gross NPA is one of the industry's lowest at 0.69. These are gross level NPAs. Investor का net NPA is 0 because आज तक उनका पैसा नहीं टूटा. Nearly 2.5 lakh loans given out. Nearly 19,000+ odd lenders have come on the platform, and whoever has come has liked it. You see the renewal rates. 9 out of 10 people are renewing their capital with me. Each and every withdrawal, each and every payout has been honored in the last 4 years since we are doing this business, and that's why we have a brilliant 100% success rate.
So initially, when RBI doled out the licenses, investors were only allowed to lend up to 10 lakhs a PAN. This was applicable from 2018 to December 2019. So even if you wanted to give me 5 crores, you couldn't do that, right? So it had to be a diversified base. Uske baad jab 50 lakh ka limit banaya, we were very conservative. We didn't bring that limit up to 50 lakhs for an investor. We only started taking 50 lakhs as we grew big, which was in last March of 2020. उसके बाद आज कोई भी स्कीम में आप 50 लाख रुपया पर पैन कार्ड लगा सकते हैं. This, so your current AUM is around 830 crores? These are gross disbursement. My net AUM is around 500 crores. Because a lot of money that keep on coming back, keep on rolling out, and plus there are some investor withdrawals which they take back money. So आज का net active book is 500 plus crores. And what would be the industry? Sorry, I'm asking, and I'm not sure. Industry? Yeah, the industry size of this AUM. Meaning how many industry of players P2P, unfortunately, the numbers are not very clear. They are grey because RBI doesn't publish this data. But the industry today should be anywhere between 3 to 5,000 crores in totality, where again the top 7-8 people are doing this business. The other license holders are largely dormant or have an AUM of less than 20-50 crores. Okay. And if your average XIRR is about 23%, can the returns are still around 9.5%, you know, so even after any losses that you bear, as you said, by 2% yes. or so, the returns on your side of the table is about 11% or so. Yes, absolutely. Yes. So is that something competitive, or are there players? Very competitive, sir. Because when you look at the margins are good, but these are gross margins. Usme se I have to first recover my working capital cost. I have to recover my NPA cost, if any, and then eventually I'll make profits. So although the margins look humongous and beautiful, these are decent margins for anybody to do business. Lesser margins, you get killed out because the cost of getting new borrowers is very, very high because you have a large rate of new borrowers coming in. But let's assume 100 borrowers came in. Because I was conservative and only selected a very good set of borrowers, only 30-35 got approved. But kharcha to maine 100 pe kar diya. So the cost of 100 got expensed out on 35. That's why the working capital cost is very, very high. And that's why you have to have these margins. While before the interest rate cuts that happened in the economy, we were making an average gross of 27, 28, and investors were at that point of time making nearly 11 to 12% return. With time, when interest rates came down, we optimized our lending rates. That's why IRRs came to 23, 24. And so at the bottom of today's interest rate cycle, these are great margins where investors are making their first 8 to 9.5%. Okay, Agam, my last two questions. The retail loans that you said, do you have visibility of what kind of purpose that these retail loans are being taken? Number one. Absolutely, sir. As I said, paisa borrower ke जेब में तो जा नहीं रहा. पैसा जा रहा है all of the service providers की services के लिए, right? So अगर कोई upgrade जा रहा है तो upgrade की कोई course के लिए पैसा जा रहा है. कोई doctor understood that. Right. What is it the maximum, which sector is it going towards? Like today the maximum exposure is in education, then followed by healthcare, and then essentially home decor. Because what happened is even the worst COVID year, majority dhande band the, but education as a business didn't grow 10-20%. It grew 200 to 400%. Right from a part-time nursing home ka MBA to an upgrade course to a quant NC course. Because in the COVID period, everybody was scared. कि शायद जॉब रहेगा कि नहीं, कि आगे इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं. It was a bleak scenario, and considering competition was increasing, everybody started upskilling themselves, and that is where the business got a crazy boost, and education has been the most preferred sector where we lend out our money. So use case is also very brilliant, and there is enough and more visibility of more and more consumers opting for better education programs. Okay, my last question, as I promised you, are you audited? Are you audited, and are those? Yes, my audited numbers are available. You can download a copy of my balance sheet and P&L from the MCA website. We are audited by Bansi Jain and Associates. If you know them, great. If no, I'll give you background. They are the pan-India GST auditors for Axis Bank. They are the auditors for listed companies like Mahesh Tutorials. So very well-known brand. You can take all the financials that you require from the MCA website and do a detailed due diligence on us. Great. Thanks, Agam. My pleasure. Agam, what if there is a huge redemption pressure like it has happened in a lot of debt funds? So how would you manage that? Brilliant question, sir. The good part is currently out of a total corpus, let's assume the corpus was 100, only 35 rupees of corpus is in the liquid scheme. The balance is weighted at a 12-month or higher tenure, which is locked in.
राइट? सो लेट्स अज्यूम अ वर्स्ट केस सिनेरियो, 10% लोग आके बोलते हैं कि मेरे को मेरा पैसा वापस कर दो, आई एम इन द लिक्विड फॉर्मेट, राइट? गुड पार्ट इज माय एवरेज टेन्योर ऑफ लोन्स आर नियरली 10 months, which means हर महीना मोटा मोटी मुझे 10 रुपया तो सिर्फ EMI से वापस आ रहा है. Over and above that, every investor's portfolio at any point of time will have anywhere between 10 to 15 rupees cash, because EMI आया है, reinvest हो रहा है, थोड़ा कैश पहले ही हम रखते हैं for safety net, which means at any point of time 20-25 रुपया of the overall raise is available in the liquid format. अब let's assume Swapnil ji tomorrow came out saying कि मैंने 50 लाख डाला है, मेरे को 50 लाख विड्रॉ करना है. बट ऑब्वियसली उनके लोन्स तो कल खत्म नहीं हो रहे. ही इज गिवन अ लेट्स अज्यूम 10-month loan, 12-month loan, 16-month loan, right? So what happens is similar to a bank. आपके underlying loans are sold in the market by and bought by the existing investors on the platform. अब बाकी लोग को भी EMI आया है, अब they need to refinance and buy new loans or invest into new loans. They can either do that or take the loans of an exiting investor and give you an exit. Similar to how banks give you liquidity. आज आप सेविंग्स बैंक में पैसा रखते हैं, आपको 2.5-3% मिलता है. अब वो कैसे मिलता है तो लिक्विड. बट ऑब्वियसली द बैंक इज लेंडिंग दैट मनी आउट, बट व्हेन यू विथड्रॉ योर मनी और टेक आउट दैट लिक्विडिटी, he sells the underlying loans map to you to other investors on the platform. So that is how we also manage liquidity. And as I said, even in the worst of worst pandemic, जो मैं 10% scenario बोल रहा हूँ, that happened, right? जब 2 lower circuit लगी before the pandemic, by average withdrawal rates were nearly 3%. When the 2 lower circuits came in, that month the withdrawals spiked up to 10%, 3 sigma. Even in that scenario, easily I could repay anybody and everybody their full capital and accrued interest. तो आज 10 का आप बोल दो 20 भी हो जाएगा, 14 sigma event, still I will be able to cater to that liquidity. And the good part is, as you rightly said, mutual fund में issue आया. क्यों आया? क्योंकि in a 1000 crore mutual fund you can put in 250 crores and plug out that 250 crores, right? Corporate डाल सकता है, easily निकाल सकता है. But here you are capped out to 50 lakh rupees of PAN card, which means आप चाहो तो भी, जैसे 100 करोड़ का भी बुक हो तो आप मेरे को 25 करोड़ नहीं दे सकते, आप मैक्सिमम 50 लाख दे सकते हो, which means you are a very tiny droplet in the massive ocean. So when you withdraw your money, it's not going to be concentrated withdrawal at any point of time, even at an investor level, because the investors are very well diversified. That is what gives me safeguard. Okay. और कुछ क्वेश्चन है तो we are more than happy. Agam will be answering. Hi, Upendra here. Yes, Hi, sir. Yeah, what are the segments you are allowed to lend by RBI? Is there any stipulation that you have to lend to these segments and not to these segments? No such stipulations at all. I can do any and all types of financing. RBI is very, very clear कि आपको लोन देना है. आप कौन सा लोन दे रहे हो, कौन से सेगमेंट में दे रहे हो, they don't care. They are saying कि अच्छे बोरोअर्स को लोन दो, सामने इन्वेस्टर्स को मैच करके अच्छा रिटर्न बना के दीजिए. What we said early in the day, let's look at segments, especially in retail, जहाँ fraud is the biggest risk or issue. Let's look at segments which are service based, क्योंकि कोई सर्विस बेच नहीं पाता और बोरोअर को जब पैसा मिलेगा नहीं, डायरेक्ट डीलर को चला जाएगा. The biggest risk of retail lending, which is fraud, gets eliminated. That's why we started with education, healthcare, home decor. We'll keep on trying out new and new avenues where we can lend, but we do that first with our personal money, try and test out, see visibility over time. Only when we see there is success in that sector, success in the vendor and the type of borrowers, we will introduce that in the portfolio. And that also we do only after intimating all our clients through our monthly fact sheet. जैसे म्यूचुअल फंड हर महीने फैक्ट शीट पब्लिश करता है, मैं लास्ट 3.5-4 साल से पब्लिश कर रहा हूँ. तो पूरे डिटेल्स कि कोई सेगमेंट में जा भी रहे हैं तो उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, क्यों वैलिडेटेड है, क्यों करने जैसा है, all of that details are shared with you beforehand. So ये इन्वेस्टर को भी आएगा यूजिंग फैक्ट शीट, हर इन्वेस्टर को मंथली आएगा. So we share it with the distributor eventually कि एक साथ कितने लोग ईमेल चेक ही नहीं करते हैं. Everybody now checks a WhatsApp. So we are doing a WhatsApp integration so that investor also gets it in the near future. But a distributed email goes out and a WhatsApp copy goes out to the distributor, which they can share with each and every person in the country or any of their clients. Okay. So comes in enough detail at the portfolio level कि how's the performance. I have fact sheets for last 2-3 years. अगर किसी को चाहिए तो please you're most welcome to connect with me. मैं आपको help कर सकता हूँ with the fact sheets. Yes, people. Any more questions, please? अगम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट ऑल ऑप्शन, मतलब 3 months 6 months ये तो समझ गए, बट इंटरेस्ट इज पेड एट द एंड और हाउ इज इट पेड इन? राइट, सो इन्वेस्टर हैज 2 ऑप्शंस. या तो मंथली ब्याज ले ले डिपेंडिंग ऑन व्हिचएवर स्कीम. हर स्कीम में मंथली ब्याज का तो ऑप्शन है ही है, हर महीने की पहली तारीख पे, और वर्स्ट केस पहली तारीख पे अगर बैंक हॉलिडे है तो सेकंड डे पे
उसको पूरा जो भी उसका मंथली ब्याज अर्निंग है डिपेंडिंग ऑन द रेट्स, ही विल गेट इट इन द बैंक अकाउंट. अगर इन्वेस्टर को मंथली नहीं चाहिए, देन कैन ऑप्ट फॉर अ क्यूमुलेटिव पे आउट. लिक्विड वाला क्यूमुलेटिव पे आउट इज आफ्टर 12 months, और ऑल अदर स्कीम्स डिपेंडिंग ऑन देयर टेन्योर्स, कोई 3 महीना या 6 महीना या 12 महीना, उस हिसाब से उसके एंड ऑफ द टेन्योर पे प्रिंसिपल प्लस द टोटल इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड इज पेड आउट. सो इन्वेस्टर हैज एन ऑप्शन अगेन एट मैच्योरिटी. ऐसा जरूरी नहीं है कि पे आउट ही हो जाएगा. इफ ही वांट्स टू रिन्यू 15 days बिफोर मैच्योरिटी, ही विल हैव 3 ऑप्शंस कि पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिन्यू कर दीजिए इन एनी ऑफ द स्कीम, या फिर इंटरेस्ट वापस दे दीजिए और प्रिंसिपल रिन्यू कर लीजिए, या फिर थर्ड सिंपलेस्ट ऑप्शन सब कुछ वापस कर दीजिए. सो इन्वेस्टर विल ऑलवेज गेट दैट ऑप्शन. Okay. Maybe another extreme question. What is the guarantee that liquid loans will never close? Or brilliant. Right. So that is the biggest challenge that we wanted to solve for from day one. When we raised capital, we were very clear कि capital is thankfully only for OPEX खर्चा. अब रेस तो 12 करोड़ किया था, आज मेरे पास 12 करोड़ से ज्यादा पैसा ऑलरेडी बैंक में पड़ा है. Right? It means even after turning profitable, I'm a self-sustaining engine. The reason to turn profitable was this: you should have visibility. I'll have enough manpower. I'll have the infra to run this business perpetually. That is only possible when I'm profitable. अगर loss making होता तो मेरे को दूसरों की तरह मार्केट में घूमना पड़ता पैसा रेस करने के लिए. अगर कोई पैसा नहीं देता तो धंधा बंद कर देते. Right? So our idea is always to remain profitable, have enough and more manpower, have enough and more stake in the game by even the largest of the largest people, so that we can continually scale up, continually serve our customers. And that is why we have created an edge today. But theoretical scenario भी अगर ले लें कि let's case liquid loans बंद हो गया तो क्या होगा, राइट? तो भी आपके पैसे को कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपका पैसा मेरी जेब में या मेरे बैंक में तो है ही नहीं. एस्क्रो के द्वारा आगे दिया गया है, रीपेमेंट वापस एस्क्रो में आ रहा है, तो पैसा इवेंचुअली आपको ट्रस्टी वापस आके दे देगा. Which is IDBI, yes. So that safeguard at every investor's end is possible. So आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि मैं रहूं कि ना रहूं. It surely is in your interest कि मैं भी रहूं, and that's why we have turned profitable. We have made enough and more money to help not just investors make money, but also make the company good money so that we can carry out all our operations seamlessly. Okay. So size of balance sheet will be right now just for. So revenues this year we'll be doing anywhere between 45-50 crores of revenue. PAT should be this year we'll close at anywhere between 4 to 10 crores depending on when we book income, because as I said my booking of income is delayed. आप लगाते और निकाल देते हैं. Size of the book, lending book. हाँ वो तो मैंने पहले बताया ना कि total disbursements as on date is 830 crores. The net book is nearly 500 crores plus. Thanks. I really appreciate. Thank you. My pleasure, sir. Yes, people. मेरे पास काफी क्वेश्चंस है अभी भी, बट आई एम स्टिल वेटिंग. अगर कोई एग्जिस्टिंग मतलब पार्टिसिपेंट्स में से पूछना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री. यस सर, प्लीज. Does this come under tax saving bracket? क्योंकि हम साल का हर साल कुछ अमाउंट to get tax benefit, so we put some money. This is not qualified under ETC. You don't get a tax benefit here. This is a pure investment income. और जो भी आप टैक्स लाए में उस हिसाब से उसको टैक्स भरना पड़ेगा. ओके, थैंक यू. अगम, कैन यू थ्रो सम मोर लाइट? आपका जो अंडरराइटिंग टीम है वो कैसे काम करता है, कितना बड़ा है, और अगर एक्चुअल में अगर डिफॉल्ट होता है बाय सम बोरोवर तो क्या कैसे प्रोसीजर क्या है? एब्सोल्युटली. फर्स्ट I'll break this in 2 parts. पहले तो क्रेडिट अंडरराइटिंग टीम क्या है, कैसा है. सो माय हेड ऑफ रिस्क is Neeraj Murarka, IIT Guwahati. I am Calcutta pass out. Worked in the US for more than 10 years. Worked first with Capital First, which is the 3rd largest credit card issuer in the world. Then worked with Lending Club, जिसकी मैंने पहले बात की, which is the largest peer-to-peer firm in the world. He was senior director credit pricing and risk there. He came back to India. We roped him in, right? उसके अंदर 20 जन की टीम है, which eventually runs every and all instructions basis the whole algo and the risk metrics that are defined by Neeraj. Of how to evaluate, who to evaluate, what type of responses have to be given. Once the loan is disbursed, basis the underwriting criteria, which is typically average 700 plus credit score borrowers, tier 1, tier 2 situated individuals, having a good salary, lower leverage, good savings, typically having brilliant ability and intent, which is seen through their credit report. Once the loan is approved, then there is regular follow-up through our 18 plus member collections and recovery team.
तो जैसे आज आप कोई बैंक से भी लोन लेते हैं, आपको रिमाइंडर आता है, SMS आता है, ईमेल आता है कि आपको पैसा चुकाना है, आपके बैंक में पैसा रहने दीजिएगा, और NASH ये दिन पे डेबिट मारेगा तो पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली हमें क्रेडिट होगा. लेट्स अज्यूम वो फॉर सम रीजन देयर वाज अ बाउंस ऑफ NASH, देन दे विल रीच आउट अगेन टू द बोरोवर कि किस रीजन से हुआ, क्या पैसा कम रखा था अकाउंट में या फिर ऑपरेशनल इशू था. वो रीजन सॉल्व करके नेक्स्ट दिन पे सब्सिक्वेंट NASH प्लेस किया जाएगा, राइट, बिकॉज दीज आर ई-NAShes, आई कैन प्लेस इट एज मेनी टाइम्स आई वांट. लेट्स अज्यूम अ बोरोवर गोस डिलिंक्वेंट, 90 दिन तक ट्रेस ही नहीं हो रहा है, राइट, तो उसके पहले तो उसकी सर्विस अटका देंगे. एजुकेशन है तो सर्टिफिकेशन अटका देंगे, राइट. अब उसने 20-30 रुपया तो अपफ्रंट भरा है, प्लस हम पहले दिन पे तो कोई डिफॉल्ट नहीं मारेगा तो उसने और 20-30 रुपया तो थ्रू आउट द कोर्स भर दिया, राइट. आई रिकॉर्ड गुड इनफ मनी. बट उसके बाद 90 डेज हो गया, देन आई हैंड ओवर द केस टू वन ऑफ द 20 कैश कलेक्शन एजेंसीज दैट वी हैव टाई अप विद. These are agencies which typically all banks and NBFCs tie up with for recovery. These are professionals. Then they take on the case, send a legal notice to the borrower, reach out to his residence, reach out to his office and do requisite recovery, right? So as a very large bank, as HDFC भी जो करता है, बजाज भी करता है, उसी हिसाब से हमारा पूरा रिकवरी और कलेक्शन प्रोसेस भी है well in place. Today we are a 135 member team doing this business, working under Liquidloans payroll. Okay. Any more questions, people? आप लोगों को भी like bank, do you also have any ratios to be maintained? CRR ratio, SLR ratios? No, so CRR, SLR तो सिर्फ banks में होता है, NBFC में नहीं होता. NBFCs में basically capital adequacy ratio is what is required for regular NBFCs because they are taking monies on their balance sheet. Considering I am not taking on my balance sheet, that's not a requirement. So our skin in the game or my capital adequacy is in the form of the fees that I was to earn from you. मैंने तो working capital day 1 लगा दिया, पर वो मैं आपसे नहीं कमाता. तो पूरा जो बफर है, right from your 9.35 to whatever gross return, 23-24 का रिटर्न, is my skin in the game as form of capital adequacy. अगर गलती से अगर हिट आया तो वो मेरा कैपिटल लोड कर देगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल उतना रिकवरी कम होगा. So that safeguard I've already built in the model from day 1 in the investor's best interest. Okay, understood. So we are coming towards the end of the presentation. People, अगर कोई question है तो please feel free to ask question. Agam is here to address them. Feel free to ask your question. If you want, put it in the chat box. If you want, raise your hand or just unmute yourself and ask. So ये trustees का role exactly होता क्या है? Because honestly, in case of DHFL, the experience of the trustee was not really good. So trustee का exactly role होता क्या है, and how do we मतलब make sure कि the trustee fulfills their responsibility properly? Absolutely. So what happens here in a peer-to-peer NBFC setup, पहले तो 2 करोड़ रुपया अलग से ट्रस्टी को जमा करना पड़ता है, राइट? कि कल जाके लेट्स अज्यूम Liquidloans goes down, तो ट्रस्टी विल डिप्यूट कैश कलेक्शन एजेंसीज एंड रिकवर. अब ट्रस्टी का तो बट ऑब्वियस काम कैश कलेक्शन का है नहीं, ही हैज टू हैव कैपिटल टू डिप्लॉय दैट मनी एंड रिकवर दोस मनी. तो डे 1 पे आरबीआई ने बोल दिया दे दो इनको, राइट? अब ट्रस्टी क्या करेगा, जब कब कोई मैं लोन अप्रूव करता हूँ, राइट, अज्यूम आपका लोन अप्रूव किया कि शिवानी का लोन अप्रूव किया, वो सब डॉक्यूमेंट्स पहले वेट करेगा. सो व्हेन आई गिव एन इंस्ट्रक्शन कि मेरे को ये पैसा फ्रॉम स्वप्निल जी's इन्वेस्टमेंट अकाउंट हैज टू बी गिवन टू लेट्स अज्यूम 200 बोरोवर्स, तो ऐसे ही पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा. पहले देखेगा किसका लोन है, क्या लोन है, क्यों अप्रूव किया है, कितना पैसा कहां देना है. देन द ट्रस्टी विल इन्फॉर्म द एस्क्रो. आई कांट इवन इन्फॉर्म द एस्क्रो कि पैसा बाहर दो, राइट? सो दे हैव मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशनल राइट्स, आई हैव ओनली व्यूइंग राइट्स. फिर जब पैसा बाहर जाता है, उसमें से जब बोरोवर रीपे करता है, NASH इज अगेन फॉर द एस्क्रो. पैसा आएगा वापस एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा. अब उसमें से अगेन ट्रस्टी हैज टू एंटरटेन योर रिक्वेस्ट कि जो आपने अग्रीमेंट किया, जो आपने स्कीम दिया, उस हिसाब से जो आपने पे आउट लिया, वो ट्रस्टी वो एस्क्रो में से निकाल के आपके बैंक अकाउंट में पास कर देगा पैसा. उसके बाद लेट्स अज्यूम यू टुक एन एग्जिट, आपने अपना कैपिटल रिटर्न बना लिया. देन आई पुट अ रिक्वेस्ट बैक टू द ट्रस्टी कि सर का पैसा बन गया है, अब इंक्रीमेंटल जो सर के पोर्टफोलियो में रिटर्न बना है वो मेरी फी थी एज पर द डिफाइंड अग्रीमेंट, अब वो मुझे आप क्रेडिट कर दीजिए. So trustee's role is not dormant similar to a mutual fund where he is not acting in capacity. Here, every and all fund flow he has to execute. I can't execute. I can't tell the escrow to do anything, right? Okay. And considering this trustee is owned by the government of India, it is more diligent. It's not a private trustee. I can't have a hand in glove with that trustee whatsoever, because any and all data that I submit
has to mandatory match with the data that bank again submits to the RBI and also what the trustee submits to the RBI. So any misappropriation of data or fudge data can also be not shared, क्योंकि अगर गलती से मैंने कुछ गलत भी दे दिया तो पकड़ा जाऊंगा, बैंक भी को डेटा अलग देगा और ट्रस्टी भी अलग देगा, वो तो होगा नहीं. So then bank has a very easy mechanism to validate कि are these guys doing a good job, true job, moral job or not. कहीं भी डिस्क्रिपेंसी मिला ऑटोमेटिकली लाइसेंस एक्ट कर देंगे. ओके ओके. इंडिया में हुआ है अब तक ऐसा कोई P2P का लाइसेंस है? अभी तक कोई नहीं, थैंकफुली. ओके ओके. So any more questions? I'll just wait for half a minute. Sorry. कोई भी क्वेश्चन है, हिंदी, मराठी, प्लीज गो अहेड. इवन गुजराती, आगम इज ओके. I speak Gujarati वाले. So please. Hi. Yes, Praveen. Hi, Praveen ji. What is the maximum loan you give to a single client? A maximum loan given to a single borrower is 10 lakh rupees as per RBI regulation. But at any point of time, your exposure even into that borrower can't be more than 50,000 rupees. That's also an RBI regulation. Okay. So even if you put 50 lakhs tomorrow, Praveen, your maximum exposure per borrower will be only 50,000 rupees, right, Agam? Yes, and that's an RBI max. अब मैं तो वो max में नहीं जाता हूँ. आपका exposure, what I am saying, कि आपने जितना भी पैसा लगाया उसका आधा टका will go max to one borrower. Okay. And which is also visible on your dashboard, जो आपके Yes. dashboard पे दिखता है, investor dashboard पे. मुझे एक क्वेश्चन था. Yes, sir. ये जो अभी ये परसेंटेज रेट्स दिए हैं, सो डू दे चेंज, और मतलब क्या टाइम फ्रीक्वेंसी में या क्या मार्केट कंडीशंस में चेंज होते हैं, मतलब? राइट. सो दे आर इवैल्यूएटेड एवरी मंथ. कभी कभी चेंज होते हैं, कभी कभी काफी बार 2-2, 3-3 महीना, 6-6 महीना सेम रेट्स रहते हैं. राइट. सो व्हेनेवर देयर आर चेंज कमिंग अप, यू विल बी इंटीमेटेड कि चेंजेस आर कमिंग इन. एग्जिस्टिंग पैसे पे कोई इंपैक्ट नहीं आता. अब जो नया पैसा लाएंगे, लेट्स अज्यूम आज 5 लाख रुपए आपने 12 महीने पे डाल दिया एट 9.25%. कल जाके 2 महीने बाद मैंने 9.25 का 9% कर दिया. तो ये वाला पैसा तो आप 9.25 1 साल तक कमाएंगे ही कमाएंगे. अब बाद में अब नया पैसा ले और 1 लाख रुपया डालना चाहेंगे, तब 12 महीने के लिए जो रेट होगा उस हिसाब से मिलेगा. एब्सोल्युटली सर. And does any market conditions like equity or budget or anything like कुछ नहीं, no volatility, no M2M. कल इंटरेस्ट रेट गिर जाए, मार्केट 30,000 का सेंसेक्स 20,000 हो जाए, आपको कोई इंपैक्ट नहीं. आपका रेट, आपका टेन्योर डिफाइंड है, उसी टेन्योर और उसी रेट के हिसाब से आपको पैसा वापस आएगा. Okay. No volatility, no M2M, no interest rate risk as a concept altogether. Okay. Thank you. My pleasure. With this, if there are no more questions, I thank all the participants for being patiently for all throughout 1.5 hours and also being very active in terms of interacting. So thanks a lot, everyone. And thank you, Agam, for sparing time and interacting with our clients today. Thank you, everyone. Thank you, everyone. It was a pleasure talking to all of you. Thank you, Swapnil ji, for giving us the opportunity. I hope you like this product. Feel free to come back with additional questions if you have. Whenever my team is available at your disposal to resolve your queries. And then if you think it's worthy enough to at least make a test investment, you should try out with a liquid product. Worst case, 50,000 is the least amount that you can try it off with. And you can make a brilliant 8% annualized yield. निकाल के देख लीजिए, वापस डालिए, 10 बार टेस्ट करिए. Build your trust with time. That is all from our end. Thank you so much. Thanks a lot, everyone. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you all. Have a good day. Please stay safe. Thank you. Thank you. Thank you, Swapnil. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you, Swapnil sir. Thank you, Agam. Thank you, Swapnil. Yes, bye. Sandhya madam, bye. Thanks, Swapnil. Okay, Abhijit. Thanks. Okay. Bye. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye, everyone.